गुड इवनिंग एवरीवन। तो आई थिंक आज बैठने का इशू तो नहीं है, ठीक है। So we'll continue our process and you all will get the notes. We will continue our process of current affairs, the weekly one. So we will look at some news that were very necessary, but always remember how I have told you, you have to do this. It is not a separate subject. Do not treat it like a separate subject. What you have to do is, whatever you have done already, you have to update that content, and for that you require current affairs. It's very, very important. Mostly what happened? कोई नहीं, आपको उर्दू सिखा रहे हैं, मैनेज कर लेना। अच्छा, रॉन्ग स्टेपलिंग हो गई है, कोई नहीं है, न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। Challenge the normal. And online people, I believe you all have access to that folder. It is available there. You can watch, you can download it right now and can see it if you want. चलिए तो शुरू करें सब लोग. So the first thing news we have about is new parliament. The first news we have about is the new parliament that we are going to talk about. And हम सबको पता नहीं parliament मिली हमें. Congratulations to all of you. ठीक है. Congratulations to all of you. You got a new parliament. You may not visit it. You may not be allowed inside it, but nonetheless, it is for you. Okay. Anyway, so in this, we need to understand a concept, starting with the word state. The word state. You need to understand what is a state. It's a political concept. It is not like the concept you are thinking. The subunit in India, we call them state. That is a practice US had. US also call their subunits states. So we also call states. It is different. We are talking about a concept called state. So as a concept in polity, state means TPS. A territory having a population ruled by a sovereign. Okay, that we already know. And for the purpose of having a government of the people, for the people, by the people, or basically preventing concentration of power. What we have done, we have divided the states into three parts. The three parts are legislature, executive, and judiciary. This much we know. And the parliament is a critical part here. Legislature. It is the union legislature we have. The union legislature will be called, सबको पता है, parliament. And parliament में we know there are three parts of parliament. Yes. Three parts of parliament under Article 79 is President, Lok Sabha, Rajya Sabha. The Lok Sabha is the house of people. House of people. And the Rajya Sabha is Council of States. House of Lords UK में होता है. House of States तो सही बढ़िया वर्ड है, ठीक है. It's a Council of States. It is not a directly representative body. The directly representative body that we have is known as Lok Sabha. This much is clear, and it is a very crucial part of our society. Always remember the kind of representation you have in parliament that represents the current perspective. जैसे if you have 43% criminals in parliament, so it shows that society is very good. You are very ethical people. You choose best of the people in parliament. Profile of parliament is very necessary to understand the society. The kind of people you choose represents what you consider serious and non-serious. And out of that, 24 people are with murders and rape charges. So congratulations on that also. Okay, you have chosen rapists and murderers in parliament. Very good. Starting. Okay, anyway. But the prime point here is the composition of parliament always tells you about the status of society. For example, women has never got more than 12% representation. Recently, I think it is 14. It is the highest ever possible. So what it shows that women are still treated as a subordinate citizen in a country. So we all know about women rights. There are only two significant achievements they enjoy. Pehla, right to vote. And second, formal recognition of equality. Bas. Women movement, the only two success they enjoy is right to vote and
फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी, रियल लाइफ का हम कुछ नहीं कह सकते। तो क्लियर, पार्लियामेंट इसलिए क्रूशियल होता है, एंड दैट इट इज अ टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, यू कैन से एवरीवन। आपने देखा होगा व्हेन 2014 में मोदी गेट इलेक्टेड, ही काइंड ऑफ वाज, he was doing that दंडवत प्रणाम, ठीक है। so शाश्वत whatever is there, so clear, the state word means territory, population, state. It is divided into three parts. We have got a new legislature. The reason for that was, देखिए, old legislature was getting, first point, old as the name implies, it was created by Britishers, ठीक है। So it was getting old and it is also a world heritage site. इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी था about IUCN. It was in environments context. IUCN उसका आंसर था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। सो इसी तरह से यू नीड टू नो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती हैं, दे आर protected sites. You cannot bring too much changes in these sites, and now parliament is expanding over time, ठीक है। 2026 में we will again have something, a word we call delimitation. What is delimitation? Because Lok Sabha में you have two houses. The upper house is called Rajya Sabha, the lower house is called Lok Sabha, ठीक है। The lower house में you choose your people directly, your MPs. So those MPs, over time our population is increasing, so the representation should be fair. If one MP will represent a very large population, that person cannot take care of all the interest. So there are high chances that next delimitation that will happen in 2026, the number of seats will increase, and current Lok Sabha does not have, the old building does not have capacity for them. So this was a big infrastructural challenge, or you cannot make too much changes because it is a World Heritage Site. So this the need of new parliament was always felt, but the difference is Modi government took a decision to implement it. Again, there is a dispute over it. आपने देखा होगा, there are a lot of opposition parties who boycotted this, and here comes your ethics paper. How would you understand ethics? Is it ethical to boycott the parliament? It appears no, but the argument they gave is the part of politics. Politics में मैंने आपको हमेशा बताया, it doesn't matter what is the truth, what you believe is matter. Politics is all about belief. If you believe it, it matters only. So they were trying to make a question. You are not inviting the president of India, because who is the part of parliament? President, Rajya Sabha and Lok Sabha. So it should be the president of India to inaugurate the parliament. But she did not come, so ultimately the prime minister inaugurated. There were different reasons. Some strongman reasons are also there. He created it. He wanted the credit. Nonetheless, we got a parliament. So reason clear है सबको. The old parliament was having dilapidated infrastructure, and we could not expand it beyond the capacity. So we needed a new parliament, for which we have created. For prelims purpose, you must know some basic facts about parliament. So that we will have to. Delimitation में आपको बात कर रहा था. पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन का पर्पस क्या होता है? देखिए, एवरी ईयर we divide this entire India into constituencies. What is constituencies? Political boundaries. We divide entire India into constituencies. One MP represent one constituency. But the principle we have is the all constituencies should have roughly equal population. Roughly equal. This is known as national principle. Article 81. Directly mentioned nahi hai, but the national principle is that all constituency must have roughly equal population. But we know over time people migrate. जैसे आप सब भी migrant हैं यहाँ पे, मतलब सारे तो नहीं होंगे पर ज्यादातर यहाँ पे migrant है. कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया. You are not Delhi resident as per. So you all are migrant. You are here for education purpose. People move for jobs and other things. So oftentimes this equal population, it get disturbed. Some constituency may get more people, some constituency may reduce people. That depends. So to make it again roughly equal, we do delimitation. सबको समझ में आया what is the purpose of delimitation? In this, we look at the entire India and we redraw the boundaries such that every constituency have roughly equal population. So 2026 में next delimitation will happen. So उसमें there are high chances that number of MPs that we have right now may be increased. कितने हैं MPs? किसी को idea है? How many MPs we have in Lok Sabha? 5? We have 543. Okay, there used to be 545. 2 people were Anglo-Indians. That has been done away with. The video that was tweeted by Prime Minister of India, that mentioned that Lok Sabha has 545 people.
तो जस्ट बिकॉज यू आर प्राइम मिनिस्टर यू मे नॉट बी गुड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, ठीक है। उस वीडियो में ये गलत था, और इतनी छोटी मिस्टेक करी आपने, योर उसमें लिखा है लोकसभा हैज 545 people in that video, but remember how many people we have right now? 543. There were 2 Anglo-Indians that could be nominated by president if they do not have proper representation. It was a kind of reservation system. It is no longer there. 2020 में lastly we have done away with. Clear है सबको? तो clear लोक सभा, राज्य सभा, delimitation, everything. Now let us look at some few facts about our new parliament. Number one is it has some heritage symbols that we always have. So the house are themed on national symbols, like Lok Sabha is themed on national bird peacock, Rajya Sabha is themed on national flower lotus. So we have Lok Sabha for national peacock, it is themed over that, and Rajya Sabha is themed over lotus. ठीक है, इसी तरह से we have other national symbols like who is the national animal or water animal? डॉल्फिन. अच्छा, और फादर ऑफ नेशन कितने गलत हो तुम लोग. देयर इज नो फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया. When you will read Constitution of India, there is particular called Article 18. Article 18 prohibits abolition of titles. It prohibits government of India from giving any title to anyone. So there is no official father of nation. Out of love we call him father of nation. Similarly, what is India's national sport? Okay, फिर गलत बोल रहे हो, चेक कर लेना. नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, चेक करना. She knows this. नहीं है, अरे नहीं है, जीरो है, नहीं है. We do not have national sports. We do not have national father. तो एक गलत फहमियां जो आपको मिली है इसे भूल जाइए, ठीक है. Keep this in mind. उसका खत्म कहानी. वो ऐसे ही पढ़ाया था, स्पेस भरना होता है ना. पार्लियामेंट, दिस फैक्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये आप याद रखिएगा. नेशनल बर्ड पीकॉक एंड नेशनल फ्लावर लोटस पे दे आर थीम. क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट. व्हाट? आई डोंट नो, ऐसे लिखा होगा. आई डोंट नो, मे बी मीटर होगा, किलोमीटर होगा. आई हैव नो आइडिया. ये स्क्वायर किलोमीटर तो नहीं होगा, इतना बड़ा फिगर कैसे हो सकता है. हाँ चलिए, वो हो सकता है मीटर हो. तो लोकसभा कैपेसिटी अराउंड 888. एंड please everyone remember, in old parliament there used to be Lok Sabha, Rajya Sabha and joint session used to happen in central hall. अब नहीं होगा, ये फर्क आया है. Now you have Lok Sabha and Rajya Sabha, 2 houses are there, and whenever there will be a joint session it will happen in Lok Sabha itself. Remember this difference. The joint session will happen in Lok Sabha itself. And what is joint session? Any idea to anyone? हाँ, when basically your 2 houses dispute over something, then you have to have a joint session, and then joint session is to pass the bill. If the joint session pass the bill, it is assumed the bill has been passed by both houses. Clear है सबको? No dispute over here. ठीक है. Sorry. Oh, next thing is it is Divyang friendly, it is environmentally friendly. These things are different. Clear to everyone? Reasons are clear. चलिए, तो let us move to over there. Sorry, Lok Sabha speaker always presides over there. And remember why there was a dispute? Because within the boundaries of parliament, the prime minister is nothing more than an MP. The sovereign power within the boundaries of parliament is speaker. इसे ऐसे assume करते हैं, मान लेते हैं home minister has committed a murder and the home minister is trying to run away from the Delhi police. So he enters into the parliament. भागते हुए he enters into the parliament. Can Delhi police enter into the parliament? Not at all, because Delhi police is the part of government. Legislature is different, government is different. Government is executive. If Delhi police enters into the parliament without the permission of the speaker, it can be seen as government invading in legislature. दिल्ली पुलिस गेट पे ही रुक जाएगी. इट विल आस्क द स्पीकर कि वी हैव टू अरेस्ट दिस पर्सन, कैन वी एंटर. अगर वो मना कर देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते. हाँ, वो बाहर आने का वेट करो उसका. ठीक है, क्लियर? एट डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट पीपल आर सुप्रीम. आउटसाइड द बॉर्डर्स ऑफ और द बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट, हु इज सुप्रीम? प्राइम मिनिस्टर इज द मेन पावर होल्डर. विद इन द हाउस, स्पीकर इज द मेन पावर होल्डर. सिमिलरली इन द कोर्ट, हु इज द मेन पावर होल्डर? Judge.
within the court, judge. It doesn't matter whether the Prime Minister of India is sitting in front of that or the President. He is the supreme power. Whatever he delivers is the law. Clear these things, everyone? Chaliye. So we have seen why it is the two constitutional provision, remember, which I told you, Article 79 and Article 82, that will lead to delimitation. Clear? Delimitation means ke liye, remember one thing, there is going to be a big dispute. Between which country or which states? The southern states and the northern states. Because अब imagine कीजिए, UP Bihar is producing too much babies. There is a term that we use called total fertility rate. कभी नाम सुना है इसका? Total fertility rate क्या होता है? Yes बोला था तुमने तो. Total fertility rate माने a young woman in her productive life cycle, how many kids on an average are born. So total fertility rate definition याद रखेगा. A woman in her productive life, how many average kids can be born to a healthy woman in her productive life. That is total fertility rate. Bihar, UP have high fertility rate. So over time, what is happening? मान लेते हैं 1960s में South has some representation, some seats. North had some seats. Over time, North will have too many babies. South will have less number of babies. So when this delimitation will happen, who will get more seats? North. This is what the South India says. Yeah, we are doing the good work. We are implementing educational reform. For example, Kerala is known as God's own country. They have the highest literacy. And there is only one state in India and one UT that has more female than male. That is Kerala. Kerala has more female than males. The sex ratio is biased in favor of female. Why? Because of good education system. And similarly, Puducherry has the same mechanism. So they are saying, why you are punishing us for the good work? We provided education, we provided health benefits, we provide everything good. We are good in every socio-economic indicator. The northern people are not. And you are punishing us by reducing our seat. So this will become a very important flashpoint of India's federalism in 2026. जब सीट readjust होंगी, साउथ की सीटें कम होंगी और नॉर्थ की सीटें जब बढ़ेंगी, तो एक फ्लैश पॉइंट आएगा. क्यों पनिश कर रहे हो? दैट्स व्हाई डिलिमिटेशन को हर बार रोक दिया जाता है. यू डू दैट एंड यू पुट अ गैप. लास्ट डिलिमिटेशन 1970 में हुआ था, फिर 2002 में हुआ, सीधा 30 साल बाद. यूजुअली डिलिमिटेशन कब होना चाहिए? आफ्टर एवरी 10 years. That is what we have. After the population should be readjusted as soon as census. After every census, the delimitation must happen. But it will be like punishing the good states. इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? उस पर स्टॉप लगा देती है for a longer period. तो नेक्स्ट कब होने वाला है? 2026 में. And it will become a significant dispute of federalism. Southern states will cry aloud. Clear all these issues and dimension of parliament? तो पार्लियामेंट में few prelims fact remember, मेंस के लिए few things you have to remember. एक और चीज आपको खुद करना पड़ेगा, know about old parliament also, fact about old parliament, some basic fact, क्योंकि they expect you to know that also. Clear to everyone? चलिए, बाकी significance of democracy तो मैंने आपको समझा ही दिया. Next we will come to national. I covered this news I think 2 weeks back, if I'm not wrong. 2 weeks back, I covered this news, the Delhi judgment. This is Delhi judgment part 2. Let's understand what is the difference in both the cases. Because recently a Supreme Court judgment has been reversed by the central government. सबको समझ में आ रही है यहाँ तक बात? चलिए समझते क्या हुआ. So Delhi is a very peculiar case. Delhi is a very peculiar case. It is neither a UT nor a state. It is somewhere in between. बैठ जाओ जल्दी. ऑनलाइन पीपल सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में अभी तक? ठीक है, नहीं है ना? चलिए, सो देखिए व्हाट हैपेंड. दिल्ली इज नीदर अ स्टेट नॉर अ UT. ठीक है, इट इज समथिंग ऑफ स्पेशल कॉल्ड एज NCT ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. तो व्हाट इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया? देखो यही होता है जब आप मेंस में टॉप मारते हैं और इंटरव्यू में 100 मार्क्स लाते हैं.
जब ये छोटी मोटी चीज आप इग्नोर कर देते हैं, दिल्ली है कैपिटल इंडिया की, किसने बताया आपको? न्यू दिल्ली है। इट इज जस्ट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली इज अ बिगर रीजन, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंगटन डीसी कैपिटल कहाँ की है? अमेरिका की। इट इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इट इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एंटायर स्टेट, दैट इज कॉल्ड वॉशिंगटन। बात के लिए तो इस तरीके से याद रखिएगा। सो देखिए रिसेंट में व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ सीवियर इशू। दिल्ली इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। देखिए दिल्ली स्टेट नहीं है, तो इट कैन नॉट बिहेव लाइक अ स्टेट। इट इज नीदर अ यूटी, तो इट कैन नॉट बिहेव लाइक अ यूटी। यूटी में द सुप्रीम बॉस इज द यूनियन गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट। दैट पर्सन हैज ऑल द पावर्स इन एवरी यूटी। जो वो बोलता है दैट इज लॉ, बट दे आर यूनियन कंट्रोल, ठीक है। स्टेट आर डिफरेंट, स्टेट आर जस्ट लाइक यूनियन गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ स्टेट, सेम mechanism. They have a legislature, they have their own judiciary, the highest court is the high court, and they have their own executive, that is the government of the each states. यहां तो बात क्लियर है। तो there's a different mechanism. अब यूटी में दिल्ली का एक स्पेशल केस बना। दिल्ली के पीपल वर डिमांडिंग कि भाई वी वांट आवर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली वैसे तो बहुत छोटा है, बट दिल्ली हैज हाई डेंसिटी। देयर आर लॉट ऑफ स्टेट्स इंडिया में, जो आपके सिक्किम वगैरह की जो स्टेट्स होते हैं, ज्यादा लोग दिल्ली में होते हैं, तो दिल्ली हैज वेरी हाई डेंसिटी। तो दिल्ली पीपल सेड वी वांट आल्सो आवर इलेक्टेड गवर्नमेंट, एंड एवरीवन हैज अ राइट टू इलेक्टेड गवर्नमेंट। सो अल्टीमेटली इनिशियली जब देश आजाद हुआ, दिल्ली हैड अ इलेक्टेड गवर्नमेंट, फिर उसे अबॉलिश कर दिया गया। काफी लंबे समय तक अबॉलिश रही। 1990s में जाके फिर से दिल्ली को क्या दिया गया? एक सरकार दी गई। यहां तक बात सबको समझ में आई? सो कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स आर लाइक अपेंडिक्स इन अ बुक। जब बुक पढ़ते हैं तो प्रीफेस होता है, मेन कंटेंट होता है, एंड देयर इज अ अपेंडिक्स। द प्रीफेस, द मेन कंटेंट एंड द अपेंडिक्स। So similarly in constitution you have schedules. Schedules में there is a particular schedule known as schedule 7. Schedule 7 has three. अब I will snatch power out of it. अभी देखिए, this is a classical case study of ethics. मैं हमेशा बताया political dimension we will never touch. Every current affairs where there is a political news we will cover spin-offs like constitutional framework, some ethical dimension. So what happened there, what is done by Modi government is absolutely ethically wrong. In all dimension ethically wrong. Legally may be right, but legally is something different. Legality says that you can kill somebody, but killing is a sin. So ethicality is different, legality is different. Keep this in mind. So in this case what happened, Modi government added another subject called services. Services का मतलब all high ranking officers will be at the disposal of Modi government. And on behalf of Modi government, there is a person sitting in Delhi known as Lieutenant Governor or LG. बात समझ में आई सबको? अब दिल्ली गवर्नमेंट ब्रॉट सम गुड स्कीम्स, जैसे फॉर एग्जांपल होम डिलीवरी। अब देखिए, अंडरस्टैंड दिस, इफ यू हैव सीन दिस लोकल राशन शॉप, वहां पे कितना ड्रामा होता है। द कॉमन पीपल हु गो देयर, वो आधे टाइम कह देते हैं पीछे से राशन नहीं आया, जबकि द सेम राशन इज अवेलेबल ऑन अ किराना शॉप नियर बाय। They play because the people who go to a government ration shop, of course those people are not well connected, well educated. अगर होते तो वहां क्यों जाते? So this ration mafia plays this, and it's a big mafia in India. So what happened is BJP, Congress, आप government thought we will pack your food, जो भी आपका entitlement है as per your ration card, we will pack entire entitlement in the Food Corporation of India warehouse and will directly deliver to the home. So all this mafia in between who controls will go away. बात समझे? गुड इनिशिएटिव, बट एलजी ने रोक दिया। अब इसे ऐसे समझिए कि डेमोक्रेसी किस फंक्शन में वर्क करती है। यू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव मस्ट फुलफिल द डिमांड। जैसे मोदी जी ने अगर बोला कि, जैसे केजरीवाल की बात करते हैं, केजरीवाल ने बोला कि आई विल गिव यू 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अब सरकार में आने के बाद हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वी द पीपल, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप चोरी करो, डकैती डालो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बैग बोरो स्टील, आई डोंट केयर। You promised me 200 units and I want it. Why you promised then? That's how democracy functions. In democracy, you choose your representative on some promises they made. If they do not fulfill them, you throw them out next 5 years. बात समझ में? अब यहाँ पे there's a problem. You have a democratically elected Delhi government. अब आप government promise something and the LG is stopping that on behalf of central government. So how come this is a democracy? And there is a history parallel to this. I think, I don't know, your history is covered, modern history?
Okay, modern history में there is a particular incident, Battle of Plassey. After Battle of Plassey, the British people, particularly Robert Clive, he installed dual government in Bengal. There were two people in Bengal, the Nawab of Bengal and the British appointed person. What happened? All the powers were in the hand of the British, and all the responsibility were in the hand of Nawab of Bengal. That similar has happened in Delhi. Now, Delhi mein you have a democratically elected government who has the responsibility of fulfilling all the promises they made. But who has the power now? LG. बात समझ में? This drama went to Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार जजमेंट दिया इन 2018 एंड रिसेंटली इन 2023. अभी आई है तो एक दो हफ्ते पहले, और हमने कवर किया था प्रीवियस करंट इवेंट में. बट इसमें एक बदलाव आया, दैट वी आर स्टडिंग. यहां तक सबको समझ में आया? Supreme Court gave a very ethical judgment. Supreme Court simply said that Lieutenant Governor or LG in Delhi is nothing more than an administrator. He's just an administrator. So he has to either abide by the commands of the Delhi government headed by Chief Minister or by the President. There is no independent power of Delhi LG. This is also called by some scholar like constitutional renaissance. एक term होती है constitutional morality. यूपीएससी ने आई थिंक एथिक्स में क्वेश्चन पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे, पिछले कुछ साल, मुझे याद नहीं कौन सा ईयर है, उसमें पूछा गया था व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब होता है दैट एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस ऑल द इंस्टीट्यूशन दे मस्ट वर्क विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क गिवन टू देम. मतलब अगर प्रेसिडेंट को काम दिया गया टू बी अ रबर स्टैम्प, तो ही विल बी अ रबर स्टैम्प, ही विल नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर. बात समझ में? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, every institution shall function within the boundary allocated to them. Clear? So in this case what happened? A democratically elected government आपके पास. देखिए कितना टाइम बर्बाद हो रहा है. एक तो आपने इलेक्शन करवाया, you got the election done. इलेक्शन में पैसा तो लगता नहीं होगा, फ्री का हो रहा है इलेक्शन. हमारा पैसा लगा, ऊपर से हमारा टाइम भी बर्बाद हुआ. अब भाई उस टाइम में हम पार्टी शार्टी भी कर सकते थे, पर हम वहां पे वोट की लाइन में लगे हुए हैं. मेंटल ट्रॉमा. ठीक है. सो एक तो we wasted our time in voting, and then we wasted the money, that is people's money in the election, and we chose a government which has no powers. That is the Supreme Court said कि in a democratic system या तो आप इलेक्शन कराओ ही मत, फिर ठीक है भाई, एक ही सरकार होगी, सबको पता है मोदी सरकार है यहाँ पे. दिस इज अ यूटी. आपने एक चुनी हुई सरकार भी दे रखी है, यू हैव गिवन अस अ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड इट हैज नो पावर. तो क्यों दे रखी है? काहे बर्बाद कर रहे हो समय हमारा? सबको समझ में आ रहा है? तो दिस डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, इट वाज हाईली मॉरल डिसीजन. अब क्लियर है यहां तक? अब लेट्स सी व्हाट इज द चेंजेस रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड. अब मोदी गवर्नमेंट ऐसे कैसे छोड़ दे? आप समझिए यहाँ पे दिल्ली का आप पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस समझिए. दिल्ली में किसी को छींक भी आएगी ना तो पूरी दुनिया में कवर होती है. दिल्ली सो मीडिया अट्रैक्टिव, इफ एनीथिंग हैपेंस टू इन दिल्ली इट इज कवर्ड इन द एंटायर वर्ल्ड. जैसे मणिपुर वायलेंस इज गोइंग ऑन, इतनी कवरेज नहीं मिली उसे. अगर वही इंसिडेंट उसका 1% भी दिल्ली में हो जाता तो पूरी दुनिया में खबर चल रही थी कि पूरा इंडिया आग में लगा हुआ है. दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिल्ली, एंड दैट्स व्हाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज वांट्स टू कीप दिल्ली विद इन पावर. कोई भी सरकार रही, आई एम नॉट ब्लेमिंग बीजेपी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश करी, बट दे वर नॉट दैट अनएथिकल. यहां तक बात क्लियर है? सो लेट्स सी, रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड एन ऑर्डिनेंस टू रिवर्स द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. सबको समझ आ रहा है? रिवर्सल पॉसिबल है. अगर सुप्रीम कोर्ट गिव्स एन ऑर्डर तो दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. क्लियर दिस मच एवरीवन? सो व्हाट इज दैट ऑर्डिनेंस सेज? लेट्स सी. प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस. The ordinance provides something called National Capital Civil Services Authority, usually to appoint, transfers, promotion. कौन करता है? It is within the power of the state government headed by Chief Minister. ठीक है? But now a new structure has been created that is known as National Capital Civil Service Authority. In this, the chairman will be the Delhi Chief Minister himself or herself, whatever may be the case, and Delhi Chief Secretary and the Principal Home Secretary. So the composition is Delhi Chief Minister, Principal Secretary, and Chief Secretary. ठीक है? This commission, the purpose of this commission will be, it will advise the Lieutenant Governor. It will advise the Lieutenant Governor on Group A officers and Danix officers. I hope आपको Danix word पता होगा. Danix सुना है नहीं आपने? अरे वाह,
यूपीएससी की पढ़ाई करना है? कभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखा है? वो भी नहीं देखा। यूपीएससी में कितनी सर्विस होती है, कभी गलती से देखा है उसे? 30-40। क्या बात है। अरे यार, अगर आपने कभी सर्विसेज देखी हो तो अच्छा इतना तो पता होगा, यूपीएससी केवल ग्रेड ए रिक्रूट करती है या बी भी करती है? तभी इंटरव्यू में 100 मार्क्स मिले थे। यूपीएससी ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों सर्विसेज के लिए सिविल सर्विस का एग्जाम लेती है। उसमें आपके पास 3 तरह की सर्विस होती है। एक है आपके पास यूनियन ऑल इंडिया सर्विसेज, जिन्हें हम बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। कितनी सर्विस ऑल इंडिया है? 3 सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट। बाकी सारी है सेंट्रल ग्रेडेड सर्विसेज। उसके अलावा जब आप नीचे कभी गलती से स्क्रॉल करोगे तो नीचे 4 सर्विसेज अलग से लिखी हुई है। एक है उनमें दानिक्स, क्योंकि देखिए दिल्ली क्या है, यूटी है, दिल्ली इज अ यूटी। सिमिलरली यू हैव अदर यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव देयर ओन पीएससी, जैसे स्टेट हैव देयर पीएससी एग्जाम्स, यूनियन टेरिटरी डू नॉट हैव दैट। So for union territory, UPSC recruits officers. They are just like state PCS officers. Danix is just like SDM in state. State PCS से you become SDM, Danix से you become SDM. It is just like civil services और administrative services of state. पर recruit कैसे होती है? UPSC से. Similarly, you have DANIPS. It is just like police services of the state. State में when you clear the state PCS, you become state police officer, and that में आपका DYSP, that is not DSP, that is DYSP. ठीक है? Similarly, you have DANIPS. Clear है? DANIPS. They all are recruited by UPSC. पर जिनकी least rank आती है, the people who are at the bottom of the rank, they take these services. उसके अलावा PONDIX भी होती है, PONDIPS भी होती है, पुदुचेरी सिविल सर्विसेज एंड पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज। बात समझ में? बिकॉज दीज आर यूटीज। और मैंने आपको बताया था यूटीज में हु इज द सुप्रीम बॉस? यूटीज प्रेसिडेंट। यूटीज में द सुप्रीम बॉस इज प्रेसिडेंट। ठीक है? क्लियर है यहां तक कहानी सबको? सो नाउ you have a new mechanism in which you have National Capital Civil Service Authority. It will have 3 people: Delhi Chief Minister, Chief Secretary and the Home Secretary. And this committee or this commission will recommend about transfer, promotion, appointment of who people? Class A officer and Danix. ठीक है? And who they will recommend to? LG. ठीक है? And how the decision will be taken? It will be based on majority. अब ये है प्रॉब्लम। मतलब 3 लोग, 3 में कौन कौन? चीफ मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी। 2 लोग IAS ऑफिसर। और IAS ऑफिसर किसके कंट्रोल में होते हैं? सेंटर के कंट्रोल में। तो ये फैंसी वे है कहने का कि आपको हम पावर नहीं दे रहे। दिस लॉ, दिस ऑर्डिनेंस इज द मोस्ट अनएथिकल ऑर्डिनेंस। या तो आप दिल्ली की सरकार रखो या मत रखो। इधर इफ यू आर कीपिंग अ दिल्ली गवर्नमेंट, कीप इट फुल फ्लेजेड और अबॉलिश दिल्ली गवर्नमेंट। काहे वेस्ट कर रहे हो टाइम, पैसा, मनी? इट इज अ हाईली अनएथिकल ऑर्डिनेंस. यू आर टेकिंग अवे द पावर ऑफ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. दिस इज व्हाट द ब्रिटिशर्स डिड विद नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी. समझ में आ रहा है सबको? पैरेलल हियर, इट्स अ वेरी अनएथिकल पर्सन. तो यही मीन, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड कि आपने, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आपने 4 दिन में रिवर्स कर दिया. इतनी इफिशिएंट सरकार देखी है कभी आपने? 4 दिन में ऑर्डर, आपने ऑर्डिनेंस निकाल दिया बिकॉज यू डिड नॉट वांट टू ट्रांसफर द पावर. तो इट इज दिस ऑर्डिनेंस इज नॉट ओनली इंसल्ट फॉर एवरी दिल्ली पर्सन. ये तमाचा तो है उनके मुंह पे, उससे ज्यादा तमाचा सुप्रीम कोर्ट पे है कि तुम कुछ भी कर लो, हमसे आगे नहीं बढ़ पाओगे. ठीक है, बात क्लियर है? तो इट्स हाईली अनएथिकल ऑर्डर. एनीवे, जो भी है यही है. तो रोल ऑफ एलजी क्या रहेगा इसमें? व्हाट इज द रोल ऑफ एलजी नाउ? The ordinance states that LG will pass orders to give effect to the recommendation of this NCCSA. NCCSA will recommend the person and LG will ultimately approve. And if there is a dispute between LG and NCCSA, so what will happen? LG will return back the recommendation once. He will say, "Dobara consider kar lo." If that will again they give the recommendation, then LG again, if LG says, देखिए यहां पे एक पैरेलल क्रिएट करिए. प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है? इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर,
gives an advice to the president can return it only once. He will return the advice. If again they recommend, he must implement. यहाँ पे ये नहीं होगा. यहाँ पे they will recommend, the LG will look. If LG return back, they will again recommend. After that, if LG does not agree, nothing can happen. बात समझ में? तो who becomes the absolute power holder? LG. मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट, मतलब बेसिकली मोदी जी. ठीक है. So he is a real power center. इसके अलावा there is another law which was passed by the Modi government in 2021. They have amended this capital territory law, and now in that they have written clearly that government in Delhi means lieutenant governor. साफ लिख दिया उन्होंने शब्दों में कि गवर्नमेंट इन दिल्ली मींस लिeutenant गवर्नर, जो कि गलत है, एथिकली गलत है, लीगली में भी राइट. देखिए लीगैलिटी और मैंने आपको बताया लीगैलिटी एंड एथिकलिटी आर टू डिफरेंट थिंग. जस्ट बिकॉज लॉ परमिट समथिंग इट डजंट मीन इट इज गुड. जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ एलजीबीटी पीपल आर नॉट अलाउड टू मैरी, तो इट इज लीगल अनएथिकल आल्सो. जब उन्हें अलाउ कर दिया जाएगा इट विल बी एथिकल आल्सो. आपकी पर्सनल ओपिनियन का नहीं पता मुझे, ठीक है, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट नॉनदलेस दैट विल बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव. क्लियर है यहां तक कहानी? So this we have about Delhi part 2. Any question to anyone? पूछिए. Online people कोई question किसी के पास? Ordinance. Ordinance word आया, शायद आप में से कई लोगों को ordinance word नहीं पता होगा. चलिए ordinance word की मैं बात कर देता हूँ. So who makes law in a democratic setup? Who make laws? Parliament. State को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, legislature, executive and judiciary, and the purpose of making the law making purpose is given to legislature, union के केस में parliament. ठीक है. बट देखिए legislature जो होता है ना, it does not continue forever. वो क्या होता है? It comes, MP sit, discuss, debate, pass law, then they go away. फिर अगेन सेशन अगला आता है, अगला सेशन आता है. So imagine करते हैं there is 2 session. A session happened, parliament is now prorogued, so ultimately what will happen? Every MP will go back to their constituency. अब इन द बिटवीन पीरियड मान लेते देयर इज एन इमरजेंसी, उस केस में क्या करेंगे? अब मान लेते चाइना अटैक्ड इंडिया, सो फॉर एग्जांपल एक चाइना छोड़े कोरोना आ गया, अब इट्स अ वंस इन अ सेंचुरी इवेंट. अब कोरोना आ गया, देयर इज नो लॉ रिगार्डिंग कोरोना, so what will happen in that period? So for that constitution provides an emergency measure that is called ordinance. Ordinance is a full-fledged law. There is no difference between ordinance and a law passed by parliament. The only difference in this is it is temporary. Ordinance means a law made by executive by the time legislature is not in session. ये बात सबको समझ में आ रही है? So what will happen after legislature will come into session? They have to put this ordinance to the legislature. If they do not approve that within 6 weeks, this will die. अगर approve कर देंगे, it will become a proper law. Clear है? So ordinance can be issued by executive whenever they desire if parliament is not in session. सबको clear? कोई confusion किसी को? Online people, is it clear? चलिए, तो this I had about this news. कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, देख लीजिए नोट्स में कुछ पूछना हो तो. कैन सुप्रीम कोर्ट ओवररूल ऑर्डिनेंस? इसमें एक चीज याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कोर्ट. whenever you will do polity, जब भी करेंगे, you will understand the power Indian Supreme Court enjoy. No Supreme Court is of this world enjoys. It is that powerful. पर फिर भी सरकार के सामने कटोरा लेके घूमते रहता है. बहुत केस ऐसे हुए हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करा, उसे करना चाहिए था. बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, इवन द जजेस इन सुप्रीम कोर्ट वो आसमान से नहीं गिरे हैं. they will be sitting in such classes preparing for judicial services exam. ऐसा नहीं वो आसमान से कहीं पे आके गिरे हैं. तो they are embedded in the morality of the time and they are constrained by government as much. As far as powers are concerned, Supreme Court can do anything except there is a saying, except making a man woman and woman man, the Supreme Court can do anything. That's the saying going. So you got the answer, Soham nahi, Rashmi, you got the answer. Supreme Court can overrule the ordinance if there will be a petition. देखिए, he is saying after how long time the session take place.
कोई फिक्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल इतना कहता है कि विद इन 6 मंथ देयर शैल बी वन सेशन, मिनिमम विद इन 6 मंथ देयर शैल बी, मैक्सिमम विद इन 6 मंथ देयर शैल बी वन सेशन। अब ये लिमिट क्यों लगाई कॉन्स्टिट्यूशन ने? सिंपल लॉजिक है। मान लेते हैं देयर इज अ पर्सन इन पावर, अ पर्सन हु डज नॉट लाइक डेमोक्रेसी मच, व्हाट ही विल डू, ही विल नेवर अलाउ सेशन टू टेक प्लेस। तो उसमें क्या होगा, दे यू विल हैव अ इलेक्टेड लेजिस्लेचर, पर उसका सेशन ही कभी नहीं हो रहा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट लगा दिया कि एटलीस्ट 6 मंथ में देयर विल बी वन सेशन। अब आपकी मर्जी, आप 10 कराओ 20 कराओ, लेकिन 6 महीने में एक होना चाहिए। और रिमेंबर, पार्लियामेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर सेशन। एनी प्लेस प्रेसिडेंट नोटिफाई विल देयर सेशन विल टेक प्लेस। अगर आपके घर पे नोटिफाई कर दे तो आपका घर पार्लियामेंट बन जाएगा। ये पार्लियामेंट, हमने एक बिल्डिंग बना दी है, वी हैव मेड अ बिल्डिंग फॉर वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर, पर कंपल्सरी नहीं है। प्रेसिडेंट कैन नोटिफाई द प्लेस वेयर ऑल एमपीज हैव टू कम। देखिए, व्हाट इज पार्लियामेंट? इट इज टू मेक लॉज, टू गवर्न ऑल ऑफ अस। आपके घर पे बैठ के बना दे तो भी चलेगा, बात समझ में? तो हमने एक ऑफिस बना दिया उनके लिए, कंपल्सरी ऑफिस नहीं है। दे कैन हैव अ सेशन वेयर एवर द प्रेसिडेंट नोटिफाइज, चाहे वो कहीं पे भी हो। क्लियर? तो बट यूजुअली पार्लियामेंट में ही होता है, बट इट कैन हैपन अदर प्लेस आल्सो। एंड दैट वाज द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ अपोजिशन। वो कह रहे बिल्डिंग तो बना दी, पर लोकतंत्र कहां से लाओगे? बात समझ में आई? व्हाट दे सेड you have made the building nice, you have made the building, but what about India's credential of democracy? India, आपको पता हो शायद, India is now a flawed democracy in democracy index, and India के जो विदेशी चीजें जो हो रही है, even Supreme Court has said multiple times on sedition, एक कानून था sedition का which you will do in proper polity, and this government is accused of abusing that law, utterly abusing। कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलो, दिल्ली पुलिस अगले दिन आती है, चलो ससुराल, लिटरली आती है। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आज जाना ट्विटर पे 2-3 कमेंट मार के देखना, फिर देखते हैं यूपीएससी कैसे क्लियर होगा। ठीक है नहीं, अगर आपको यकीन ना हो रहा तो ट्राई कर लेना। चलिए, एनीवे, तो दैट इज द मेन आर्गुमेंट ऑफ द पोजीशन, दैट्स व्हाई पोजीशन बायकॉटेड। मेन रीजन उनका ये था, यू हैव अ बिल्डिंग फाइन, न्यू बिल्डिंग फाइन, बट व्हाट अबाउट द डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स? यू आर नॉट नोन गुड फॉर डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं बिल्डिंग बना के। तो ठीक है, चलिए, एनीवे, नॉनदलेस गुड थिंग। एक साल से कर रहे हो? है? नहीं, अपने अकाउंट से कर रहे हो, एंजल प्रिया के अकाउंट से कर रहे हो? चलिए, नहीं, दैट्स गुड। सो मैंने डेमोक्रेसी जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुड डेमोक्रेसी इज टॉलरेंस टू प्रोटेस्ट। एनी, अगर आपको पहचानना है व्हाट काइंड ऑफ लीडर यू हैज, बस एक चीज देखिए, हाउ दैट लीडर बिहेव्स विद स्टूडेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एंड क्रिटिसिज्म। कोई भी लीडर, कोई भी एक्सवाइजेड, राहुल गांधी कोई भी हो, हाउ दे बिहेव विद स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स एंड पीपल विद क्रिटिसिज्म। अगर दे आर अकोमोडेटिंग ऑफ देम, उनकी बात सुनते हैं, रिप्लाई देते हैं, तो समझ लीजिए दैट पर्सन इज अ गुड डेमोक्रेटिक पर्सन, अब चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ठीक है, तो दिस इज अ गुड क्रेडेंशियल, ट्राई कर लेना। चलिए, अब क्वेश्चन नहीं है तो अगली न्यूज पे चलते हैं। The next news is from international relations, that is OPEC plus. Next news is from international relations, that is OPEC plus. बोल लिया सबने? ठीक है, OPEC क्या है? OPEC is a body of oil producing countries. Oil producing countries, all the oil producing countries, they try to come together in the form called OPEC. OPEC plus means the countries which are not member of OPEC but they are also oil producing. समझ में आया? तो for IR you have to remember what is OPEC and what is the composition of OPEC. Clear है? And then why we are studying this? Because OPEC control prices of crude and India is a crude dependent country. 85% of India's energy needs are met by imported crude. India is a critically crude dependent country. So if imagine कर लेते हैं, the OPEC people increase the price of crude by even $1 मान लेते हैं, तो that $1 और मान लेते हैं पर लीटर आपका ₹1 बढ़ जाता है, because they increase the price per liter, ₹1 petrol or diesel price increases, it will have at least 10 to 20 rupees increase in food commodity,
Why? Because all the commodities in India are transported through road, which is the costliest way of transportation. The cheapest way of transportation is waterways, then railways, and then roadways. But the problem is the majority of India's freight transport is through roadways, then railways, and then waterways. और roadways में क्या रखते हैं? Truck, and these truck work on, of course, the crude oil. And the problem is 1 rupee increase in crude oil means, imagine कीजिए, a truck may run around 10 kilometers in a liter. So every kilometer, or they transport a long commodity and for a long distance, so every kilometer 1 rupee extra. And that's why whenever the crude prices rises, you see a problem in India, that our food commodity prices rises. That is something we call inflation. Inflation has two meanings. Inflation means either the price of commodity increases or the purchasing power of money decreases. Both is the means inflation. Just say if this pen is 10 rupees today, becomes 20 rupees tomorrow. So I can say two things. Either the price of this pen has increased 100%, or I can say the purchasing power of 10 rupee has decreased by 100%. बात समझ में? Both means inflation. बात क्लियर है? So crude oil is very important for India's economy, and that's why previous Saturday we were discussing about renewable energy. अगर आपको याद हो तो वहां पे मैंने यही बताया था कि renewable energy that India is pushing very aggressively is very 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 important for India. ठीक है? इसके साथ another thing we have is nuclear energy in India. सबको न्यूक्लियर एनर्जी इसमें मेंशन नहीं है, एक्चुअली साइड में मैं बता रहा हूं आपको. तो यहाँ पे आपको कंपोजिशन आपको रटनी पड़ेगी. प्लीज रिमेंबर, आप कैसे रटेंगे? गूगल निमोनिक्स, गूगल पर टाइप करना निमोनिक्स अबाउट ओपेक. निमोनिक्स तो कुछ बना लेते हैं, बहुत गूगल पे मिल जाएंगे. तो एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ आईआर, उसके लिए आप क्या करेंगे? यू विल हैव अ निमोनिक्स. सर्च कर लेना कि दिस, जैसे मान लेते हैं जीसीसी है तो कौन कौन मेंबर है. अब याद करना मुश्किल पड़ता है. निमोनिक्स अगर आप रट लेंगे तो यू कैन इजिली रिमेंबर द मेंबरशिप. क्लियर है? दैट इज वेरी कंपल्सरी. तो मेंबरशिप याद रखिएगा. 13 मेंबर्स आर हियर and 10 members are here. Okay, so I was talking about India's nuclear energy program. This you can write if it is not available there. This is linked to this thing, nuclear energy program. Who created India's nuclear energy program? ये बात तो है. Because Amber, he is in government. जिस दिन वो सरकार से चले जाएंगे फिर नहीं बोलूंगा. Promise, pinky promise. ठीक है. चलिए. So what I was saying, हाँ, India's nuclear program. This is not a weapon program. This is energy program. So India's nuclear energy program is a 3-stage program. सब लोग याद रखिएगा. It is a 3-stage program. Stage 1 में we will have uranium and fast breeder reactor. सॉरी, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नहीं है यार, कहां गया? हैवी वाटर रिएक्टर है. ठीक है. स्टेज 2 में वी विल हैव प्लूटोनियम, and with this we will have fast breeder reactor. ठीक है. Then will come the stage 3, and stage 3 where we will have thorium and again fast breeder reactor. India has just started stage 2. Why I am talking about this? Because India is, I told you, is a excessively crude dependent country. ठीक है. So India wants to become energy self sufficient or independent. कैसे हो सकता है? थोरियम. India has the world largest deposit of thorium. If we can reach to stage 3, then India will become independent in energy. उसका फायदा देखिए आईआर में. Remember that Nupur Sharma case? किसी को याद है? Nupur Sharma, she was a spokesperson of BJP. She said something to Mohammed. ठीक है. Maybe a factually correct statement. That doesn't matter. I told you politics में fact matter नहीं करते, perception matter करता है. So what happened is she said something about Muhammad, and there are so many Islamic countries.
So this word spread to the Islamic countries and they got angry. And sorry, अरे वो तो रेडिकल्स का रहता है सर दर्द से अलग वाला, वो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ठीक है। तो रेडिकल पीपल तो ऐसे होते हैं, उनकी बात छोड़ते हैं। तो देखिए व्हाट हैपेंड, इट वाज अ बिग डिजास्टर फॉर एक व्यक्ति, सिंपल व्यक्ति। शी सेड समथिंग बिकॉज शी बिलोंग्स टू बीजेपी एंड आई टोल्ड यू बीजेपी हैज अ इमेज प्रॉब्लम। ऐसा नहीं मोदी गवर्नमेंट की स्कीम टारगेट्स, ऐसा तो ना कि मोदी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव हाउस तो वो केवल हिंदुओं को दे रहे हैं, इट इज फॉर एवरीवन। बट बिकॉज देयर आर सर्टेन पीपल इन द पार्टी हु मेक सच कमेंट, इससे ऐसी परसेप्शन बन जाता है दैट एंटायर पार्टी इज एंटी मुस्लिम। बात समझ में? सो शी सेड समथिंग अबाउट मोहम्मद, द वर्ड स्प्रेड टू द मुस्लिम कंट्रीज एंड दे गॉट एंग्री। अब द प्रॉब्लम वाज दैट वी इंपोर्ट क्रूड फ्रॉम देम, और मोदी सरकार को पता था कि अगर दे रेज प्राइसेस ऑफ क्रूड आउट ऑफ वन पर्सन्स मिस्टेक, स्टूपिड मिस्टेक, हमारा नुकसान हो जाएगा। The crores of Indians will suffer just because one person made a radical statement. वो सही है गलत मैं उस पर नहीं जा रहा, उसके इम्प्लीकेशन की बात हम कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली मोदी गवर्नमेंट, पहली बार ऐसा हुआ था, मोदी गवर्नमेंट टुक एक्शन अगेंस्ट हर, दे रेस्ट्रिक्टेड हर फ्रॉम द पार्टी, इंस्टीट्यूटेड इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर वाज फाइल्ड। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं, यू गॉट द पॉइंट हियर, बिकॉज हमें पता था वी आर क्रूड डिपेंडेंट ऑन मिडिल ईस्ट, और इफ दे गेट एंग्री दे विल रेज प्राइजेस एंड इंडियंस विल सफर, इंडिया में इन्फ्लेशन विल कम। तो मोदी गवर्नमेंट ने इसलिए लिया। अब अगर इमेजिन करते हैं हम यहां होते तो क्या हम माफी मांगते? कभी नहीं मांगते, बिकॉज वी वर एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट। हम कहते हैं हाँ बुरा मानते हो मान जाओ, दैट इजराइल डिड। इजराइल काफी नोटोरियस है इस काम में। इजराइल को भी कमेंट आया था मुस्लिम कंट्रीज का, इजराइल वाले लाइक फाइन, ठीक है बोलते रहो, आई डोंट केयर, बिकॉज इजराइल इज नॉट क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन दैट कंट्री ना, वी आर। बात समझ में आ रही है? और एक और प्रॉब्लम भी है, दैट इज आवर नेबर, ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड रेडिकलाइजेशन कहीं भी हो इंडिया में ट्रिकल डाउन कर सकता है। सो आवर कंसर्न वर टू, पहला एनर्जी सिक्योरिटी, सेकंड द रेडिकलाइजेशन। क्लियर है? सो रिमेंबर रखिएगा एवरीवन, इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, हु गेव दिस प्रोग्राम? होमी जे भाभा, रिमेंबर दिस नेम। एंड इन दिस साइंस एंड टेक में द ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, नो अबाउट देयर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। तो जितने होमी जे भाभा, सारा भाई, जितने टॉप नोन पीपल हैं, इनके बारे में प्रिपेयर, एवरीवन शैल प्रिपेयर एटलीस्ट वन पैरा, हर व्यक्ति के बारे में, होमी जे भाभा, व्हाट ही डिड, व्हाट ही द सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट हिम, ये सारी चीजें यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द सिग्निफिकेंट पीपल ऑफ इंडिया। मेंस में आपको हैबिट बन गई क्वेश्चन देने की। क्लियर है? डू दैट फॉर श्योर। चलिए नेक्स्ट न्यूज, वी विल मूव टू इकोनॉमिक्स न्यूज, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दिस इज द इकोनॉमिक्स न्यूज। चलिए, सो क्या कोई क्वेश्चन? तो नेक्स्ट वी विल डू इज फॉरेन न्यूज। करें? होगी बात है। चलिए, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वी आर गोना डिस्कस। सो रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज दैट सेबी, सेबी सबको पता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी? हाँ, एनी बॉडी विच इज मेड बाय ईदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों से जिससे भी बनी हो, इट मस्ट बी मेड बाय अ लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर, वेदर स्टेट लॉ और द यूनियन लॉ, दैट्स डिफरेंट थिंग। क्लियर? तो सेबी इज अ statutory body, it controls India's capital market, particularly India's share market. This much is clear? What is share? Share is a certificate of ownership. When you take ownership of a company, the company issues a certificate that is called share, simply speaking. Clear? So recently SEBI has proposed that foreign portfolio investment, अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे सारी चीजें क्या होती हैं, there is a particular kind of investment known as FPI. FPI with investment concentrated in single stock or stock of a business group. मतलब either for example you investing your entire money in Adani group or only Adani. बात समझ? और this news is in context of recent crisis जो हुआ था. The accusation was on Adani was he inflated prices.
इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा इस्तेमाल होता है। कैसे? हवाला शायद आपने नाम सुना होगा कभी। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हवाला देखते हैं। अभी थोड़ी देर में हवाला सीखेंगे, सब लोगों को करना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो इधर द मनी कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल स्टॉक और अ सिंगल ग्रुप, क्लियर? या तो अडानी ग्रुप या फिर पर्टिकुलरली एनी अडानी कंपनी, आप मानी जो भी केस बनता हो, क्लियर? सो इन सच केस दे हैव टू प्रोवाइड ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन ऑन बेनिफिशियल ओनरशिप, मतलब they have to disclose who will be the beneficiary of this investment. Minute, granular माने even the minutest of the information. अगर 1 रुपए भी किसी के पास जाएगा तो they have to provide that information to SEBI. All the investment you are making in the stock market, इसमें से जो पैसा बनेगा किस किस पे जाएगा. It is compulsory because in Adani case there was a big dispute. It was said that Adani, particularly that Hindenburg report said, Adani made some companies, foreign companies, he transferred the money there through Hawala or other mechanism. He transferred the money there. Those companies which were registered on his brother or some relative's name, those company bought his shares. तो शेयर क्या है? देखिए, शेयर इज लाइक अ पेपर. अगर इफ एवरीवन विल डिमांड दिस पेपर तो इसके क्या होंगे? भाव बढ़ जाएंगे. लोगों के भी बढ़ते हैं, पेपर के भी बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका भाव बढ़ जाएगा. दैट इज कॉल्ड राइजिंग ऑफ शेयर्स. बात समझ में आई? सो इफ a lot of company will align to buy the share of Adani, तो क्या होगा? अडानी की जी के शेयर बढ़ जाएंगे. रिसेंट में इलॉन मस्क पे ब्लेम आया है. अभी कल की रिपोर्ट है, इलॉन मस्क रोज द प्राइस ऑफ डॉग कॉइन, आई बिलीव, ये क्रिप्टो करेंसी, ही इंक्रीज द प्राइस अराउंड 3600%. 3600% उसने प्राइस बढ़ा दिए थे इन्वेस्टमेंट करके. उसके बाद उसने क्या करा? देखिए, सस्ते में खरीदे डॉज कॉइन, उसमें कई सारी कंपनियों से बोला कि इसकी डिमांड बढ़ाओ, प्राइस बढ़ गया 3600%. उसके बाद एकदम से बेच दो. तो इसने क्या करा? उसने तो महंगे में बेच दिया. सस्ते में खरीद के इलॉन मस्क ने सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा, मतलब महीनों में उसने करोड़ों रुपए छाप दिए. नुकसान किसका हुआ? नॉर्मल इन्वेस्टर्स का. और हमेशा ही कटता है नॉर्मल इन्वेस्टर का. नई बात क्या है, इकोनॉमिक्स में ऐसा होता रहता है. सो अडानी शेयर्स में क्या हुआ? देयर वाज अ पर्टिकुलर इट इज अक्यूज्ड, प्रूफ कुछ नहीं हुआ है बिकॉज इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है. सो दैट कंपनी ट्राइड टू इन्वेस्ट इन अडानी शेयर, द शेयर वेंट अप. इट वाज अक्यूज्ड, he pledged those share to the banks. अब आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो what you do with the bank? Bank says ना, give me some security, गारंटी तो दो कुछ मुझे. So what he did is he said take my shares as the guarantee. And भाई जो शेयर are dynamic, आज 100 का एक लेख का भी हो सकता है. पहला मतलब वो बैंक कौन सी थी जिसने प्लेजिंग करवा ली? इट वाज हाईली यू कैन से कंट्रोवर्शियल एंड रिस्की एडवेंचर. शेयर मान लेते हैं आज 10,000 रुपए का, यू प्लेज 10,000 रुपए टू अ बैंक, तो बैंक की नजर में तो 10,000 रुपए आए हैं तो 10,000 रुपए आपको लोन दे देगी. और कल वो शेयर 1 रुपए का हो गया, आप तो 10,000 रुपए ले चुके हो. You got the difference here. So what happened is that shares were inflated and then that share were pledged to the banks and banks say he took the loan. It was all accused, nothing is proved because there is no investigation, तो हमें पता नहीं है. So in that context, what SEBI has brought, if there is any foreign investment in India share market, if it is concentrated in a single stock or a single business group, they must provide all granular information. किसके पास जाएगा, कितने लोग हैं, चाहे 1 रुपए भी जा रहा हो, you have to provide that. समझ में आया why this news is brought there? चलिए, तो this was all about the means. अब आते हैं, हाँ, there is something called minimum public shareholding norms. SEBI mandates, मैंने यहाँ पे mention किया है, SEBI mandates that every publicly listed company must have at least 25% of a share held by public. Any public listed company माने company on stock market must have 25% of shares held by common public, not by big investors, only common public. चलिए, यहां तक तो सबको क्लियर है, नो डाउट हियर. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं व्हाट इज एफपीआई. अब ये होता क्या? दिस इज ऑल प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, प्लीज नो दिस. बंद हो तो गया भाई.
चलिए, देश की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो अगली प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। वी हैव समथिंग कॉल्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI. Let's understand what it is. So it refers to any investment made by foreign individual, institutions or fund into financial market of a country. Funds माने जैसे पेंशन फंड हो गया, सॉवरन फंड हो गया. पेंशन फंड मीन्स वेयर एवरीवन पुट मनी फॉर देयर रिटायरमेंट पर्पस. इंडिया में एग्जांपल है EPFO, Employees Provident Fund. Also the government servant has a scheme, NPS, न्यू पेंशन स्कीम, वो भी एक प्रकार का फंड होता है, ठीक है. सो सच फंड्स होते हैं. सॉवरन फंड्स माने फंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो गवर्नमेंट के खुद के फंड होते हैं, दे आर नोन एज सॉवरन फंड्स, ठीक है. सो एनी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और अ फंड इन्वेस्ट इन अदर कंट्री, इट इज नोन एज FPI. यहां तक बात समझ में आई, ठीक है. अभी करेंगे FDI से भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है. FPI typically involves purchase of stock, bonds and other financial assets. For the people who has not covered economics, थोड़ा मैं बता देता हूँ. स्टॉक्स तो आप समझिए क्योंकि शेयर्स की बात हो रही है particularly. Bonds, bond is acknowledgement of debt. Debt माने लोन. It's a paper in which you acknowledge you have taken a debt. For example, the money in your pocket, जो नोट है आपकी जेब में, it is a kind of bond. Bond between who? RBI and you, whosoever is the bond holder. वो एक प्रकार का बॉन्ड है, उसमें साइन देखा ना आपने, RBI गवर्नर ने लिखा आई प्रॉमिस टू पे द बियरर नथिंग, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली अ बॉन्ड वेयर द RBI is promising if anything goes bad I will give you. So that note is the liability of RBI or asset? That note you have in your pocket is a liability of RBI or asset? लाइबिलिटी हो गया ना, सबको समझा. RBI की वो क्या बन गई? लाइबिलिटी, बिकॉज RBI हैज टू पे इट बैक. क्लियर दिस मच, ठीक है. सो FPI कैन इन्वेस्ट इन stocks, bonds and other financial assets in foreign market. मतलब somebody outside India investing in India will be an FPI. Clear this much? Next, it is a passive form of investment. This is the biggest difference between FDI and FPI. FDI में यूजुअली क्या होता है? इट्स अ एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. बोथ में मनी इज कमिंग, but the difference in FPI and FDI is FPI person does not take control of the company. He does not care company अच्छी चले बुरी चले, मुझे मतलब नहीं. He will come here, buy share, try to do something to get more returns and run back. इसलिए every country हाँ काइंड ऑफ नॉट फिजिकली इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट एंड ऑल. वो मैनेजमेंट डिसीजन वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होता. करना है जो करूं, मेरे को क्या, ठीक है. ऑफ कोर्स कंपनी का फ्यूचर में तो कंसर्न होगा ही वो. अगर कंपनी फ्यूचर विल गो डाउन, हिज इन्वेस्टमेंट विल बी वर्थलेस. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो मैनेजमेंट वगैरह में इंटरप्रेटेड नहीं करता, कुछ नहीं करता. एंड दैट्स व्हाई कंट्रीज डू नॉट यूजुअली प्रमोट FPI, दे प्रमोट FDI. इसलिए आप हर वक्त सुनते हैं ना FPI बहुत रेयरली बोला जाता है, because governments always promote FDI. FDI is an investment in which you actively engage in the affairs of the company. And any investment, generally rule है, any investment that is more than 10% of a venture is FDI. ठीक है. So FPI समझ में आया सबको? Let's understand types of FPI. There are two types. We divide FPI into foreign institutional investors and qualified foreign investors. And why is it so? Because to be registered, because to invest in India share market, you must be registered with SEBI. बात समझ में? You must be registered with SEBI. तो QFI is often used for investment in stocks. FPI and FII interest. FII is a type of FPI member. FDI अलग होता है. FPI is a foreign portfolio investment. The difference is here you are not trying to control the company actively. FII is a type of FPI. Volatile. FPI is very volatile. हाँ, so वापस आते हैं.
So you have FPI into two parts, that is two types, FII and QFI. QPI QFI है, ठीक है. So what is FII? Foreign institutional. देखिए नाम ही है इसमें institutional. What is institution? है, सब लोग पढ़ते हैं institution institution बोलते रहते हैं. What is institution? संस्था. किसकी संस्था? What is institution? मैं फिर बोल रहा हूँ बेसिक्स, मतलब ये टर्मिनोलॉजी छोटी छोटी होती है ना, ध्यान रखा करिए, कहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है. हाँ 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 हाँ. इंस्टीट्यूशन माने जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन. इतना दम से बोलो थोड़ा यार. मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन और नॉट? बोलो बाकी लोग क्या कह रहा है, मैं शादी नहीं करनी, टेंशन क्या है? ऑनलाइन पीपल व्हाट डू यू थिंक? हाँ, इट इज एन इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन माने क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन. जैसे मान लेते हैं यू ऑल पीपल केम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप. हाँ, बस सिंगल होते हैं, शादी का नाम तो सुना ही होगा. कर लो, प्रपोज कर लो, इतने सारे ऑनलाइन है, किसी को भी कर लो. So what I was saying कि हाँ, तो इंस्टीट्यूशन सब समझ में. इंस्टीट्यूशन माने एनीथिंग दैट इज हैविंग अ फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन. मैरिज हैज दैट. इट मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. कुछ चीजें होती हैं which are there available but they may not be the part of the society. आप सारे लोग साथ में आ जाएं, you all come together and establish rules. In this group this person will do this person will do that, these are the structures. So your friend group will become an institution. समझ में आया? So कौन होंगे foreign institutional investors? Institutions who are investing in India. Institutions like आपके big banks, big companies. ठीक है, समझ में आया? तो वैसे यहाँ पे नीचे लिस्टेड है, ठीक है. हु आर इंस्टीट्यूशन? लार्जली एफआईआईज. आपके पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, एंडोमेंट, ट्रस्टी बैंक्स. इवन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सब लोग. एनी नेटवर्थ फॉर एन इंडिविजुअल, एनी हाई नेटवर्थ फॉर इंडिविजुअल, इलॉन मस्क टाइप के लोग, दे आर ऑल्सो ट्रीटेड लाइक अ इंस्टीट्यूशन. ठीक है, टर्म याद रखिएगा. यूजुअली इंस्टीट्यूशन वर्ड इज अप्लाइड फॉर अ ग्रुप कलेक्शन, लेकिन एनी हाई नेट वर्थ फॉर एन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो अपीयर लाइक FII. यहां तक बात क्लियर होती है सबको? अगला देख लेते हैं. ये सारा दिस ऑल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, मेंस में कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा. ठीक है, अगला QFI, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स. द डिफरेंस हियर इज एनी इंडिविजुअल, ग्रुप, एसोसिएशन और रेसिडेंट. But what is the difference here and there? Difference is these are not high worth individual. ये सबसे बड़ा फर्क है. QFIs are not high worth individuals. If you are a high worth individual, you will be treated like an FII. सबको समझ में आ रहा है यूजली? ठीक है, keep this in mind. So these are the people who are from the country which are the member of FATF. ये क्या होता है भाई FATF? कभी सुना है? हाँ, सही जा रहे हो. ओहो, सही बात है. सारे वर्ड मिला दिए, कुछ तो बनेगा है. FATF कभी नाम नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं, आप सही बोल रहे हो. FATF आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया है क्या? किसी का नहीं हुआ यहाँ पे? चलिए, कैसे होगा मतलब? कैसे होगा, क्या होता है? इंटरनल सिक्योरिटी आपका होगा तो इंटरनल सिक्योरिटी में यू विल डू अ चैप्टर ऑन मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग के चैप्टर में FATF का नाम आता है. FATF इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्रिएटेड बाय अ ग्रुप कॉल्ड G7 इनिशियली. हाँ, ये अभी हाँ रीजन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपने इसका नाम सुना होगा. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. व्हाट इज इट्स पर्पस? इट रेगुलेट्स द वर्ल्ड फाइनेंसेस फॉर टेररिज्म एंड ब्लैक मनी.
मनी लॉन्ड्रिंग इन सब में काम आती है. इट बेसिकली इट्स अ ग्रुपिंग वेयर ऑल मेंबर्स कंट्रीज आर देयर. दे ट्राई टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू डील विद मनी, टेरर फाइनेंसिंग, दिस ब्लैक मनी और व्हाटएवर इज देयर. क्लियर है? फॉर दैट वी यूज FATF. ठीक है. एक और होता है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना, FATF अलग है. एक और होता है FSB, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, वो एक अलग चीज है. इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी एक और बॉडी है, वो अलग है. ठीक है. FATF का पर्पस सबको समझ में आया? मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग पे इट ट्राई टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द मेंबर्स. हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. So to become a QFI, you must be a resident of a country which is a member of FATF. और ये इसीलिए लाया गया था बिकॉज कुछ कंट्रीज होती है जिन्हें हम बोलते हैं सेफ हेवन. सेफ हेवन आर द जीरो टैक्सेशन कंपनीज. जहां पे आपके नीरव मोदी टाइप के लोग भाग के गए हैं, वो वही कंट्रियां हैं. ठीक है. इकोनॉमिक्स में व्हेन यू विल डू टैक्सेशन, टैक्सेशन में आप पढ़ेंगे इसके बारे में. पर्टिकुलरली FATF डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, बट यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इशू. इशू क्या होता है? अ लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज कम एंड वर्क इन इंडिया बट दे डू नॉट पे टैक्सेस. Companies, Facebook came to India. It did not pay taxes for a long time. अब तो थोड़ा बहुत देती भी है. It did not pay taxes for the long time. क्यों? Facebook simply said, I am not an Indian company. How could you tax me? I am a company of America. I have my servers in America. You have to have internet to access them. ऐसे ऐसे मान ली something is going in somebody's house and you are watching it from a window. So you are not a participant there. Because you have eyes, you could see. Similarly, you have internet, you could access. पर समझ में? It is not happening in your territory. तो they say, how could you tax us? उन चीजों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि you can invest in India if you're not the if your country is the part of FATF, ताकि ब्लैक मनी वगैरह से हम डील कर सके. क्लियर है सबको? तो FII, QFI, FPI क्लियर? एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन पीपल क्लियर है सबको? फिर हम आगे बढ़ते हैं FDI पे. FSB वगैरह होते हैं और भी बॉडी, वो स्टेबिलिटी के लिए बनाई गई है वर्ल्ड लेवल पे. उसका ऐसा पर्पस नहीं है, ऐसा पर्पस नहीं है. हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम करेंगे ना, उसमें आएगा. चलिए, तो सबको क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज FDI. FDI is an investment made by a person resident outside one country to create productive asset. ये सबसे बड़ी बात होती है. तो क्रिएशन ऑफ अ फैक्ट्री इन इंडिया, FDI, FPI क्या होगा? FDI होगा. FDI are always productive and for long term duration. आप if you are creating a factory in India, वो एक साल में नहीं बनेगी. और सबसे बड़ी बात, you cannot close and take it back within a year. तो FPI हम जनरली assume करते हैं is a volatile investment. It can come at rapid pace. It can also go back at rapid pace. FDI is usually a long-term investment. So every government around the world promotes FDI. इसलिए आप हर वक्त सुनते हैं न्यूज में सरकार ने FDI की लिमिट बढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया. FPI रेयरली कभी न्यूज में जिंदगी में आ जाएगा कि FPI में कुछ हुआ है. क्लियर है सबको? चलिए आगे देख लेते हैं. These are the criteria everyone must remember as it is, and this all is important for prelims. मैं बार बार बोल रहा हूँ, very important for prelims. Following investment are considered FDI if foreign investment of 10% or more in a listed company. Listed where? Stock listed, registered नहीं बोला भाई. Listed stock exchange पे which is listed. Listed माने होता है a company which is available on the stock exchange market. Clear? Next, foreign investment in an unlisted company of any amount. So in listed company, if you're investing more than 10%, you are the part of FDI, and in unlisted of any amount. But still, what is the biggest difference? FDI में you try to take participation in the management, active involvement. FPI कैसी थी? Passive. ये फर्क याद रखिएगा दोनों में. The biggest difference is FPI is a passive investment where you do not actively intervene in the functioning of the company. FDI is an active investment. क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं. अब लेट्स सी व्हाट इज द रोल ऑफ NRIs इन दिस. पहले तो ये बताइए NRI कौन होता है भाई? फुल फॉर्म तो ठीक है, होता कौन है? वही सेम
ठीक है. So what we have is NRI. NRI माने नॉन रेसिडेंट इंडियन. दैट पर्सन इज इंडियन बाय ऑल नॉर्म्स एक्सेप्ट द फैक्ट ही और शी लिव्स आउटसाइड इंडिया. इतना ही फर्क होता है बस. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स हियर. NRI इन्वेस्टमेंट दैट इज रिपेट्रिएबल. रिपेट्रिएबल का मतलब होता है विच कैन बी टेकन बैक. रिपेट्रिएबल माने यू कम, यू इन्वेस्ट एंड यू टेक इट बैक द मनी. जैसे मान लेते हैं आई केम, गिव यू सम मनी and I took it back after few days. It will be called a repatriable loan. समझ में आया आपको? repatriable माने the money you can take back. ठीक है. So investment that are repatriable are considered, while non repatriable investment are considered. अभी तो बता, repatriable माने that you can take back. जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए और 3 दिन बाद वापस ले लिए, तो इट इज अ रिपैट्रिएबल इन्वेस्टमेंट. और मैंने आपको 100 रुपए दे दिए और आप भाग गए, तो नॉन रिपैट्रिएबल इन्वेस्टमेंट. समझ में आया? रिपैट्रिएबल माने नीचे लिखा तो है, शायद मैंने ये लिखा तो है यहाँ पे. ठीक है. चलिए. हाँ, तो मैं क्या करता, ये फैक्ट याद रखिएगा. एफडीआई पर, सॉरी, एनआरआई पर्सन इफ दे इन्वेस्ट ऑन रिपैट्रिएबल बेसिस, तो उसे क्या माना जाता है इंडिया में? एफडीआई. If it is for non-repatriable basis, it will be treated like a domestic investment. सबको समझ में आया? This point is very important. Keep this in mind. So, हाँ ठीक है. और लॉ तो आपको समझ में आ गया. There is a law that you will do in proper polity known as FEMA, Foreign Exchange Management Act. Who controls that? RBI. RBI has the effective control, and the big policy making is done by Ministry of Finance. ठीक है. बट आरबीआई प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. दैट यू विल डू इन बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर, जब भी आप करेंगे इकोनॉमिक्स उसमें करेंगे. चलिए, तो रिपैट्रिएबल पैट्रिएबल हो गया. अब नाउ, अब हाउ एन एनआरआई कैन इन्वेस्ट. फॉर दैट पर्पस एनआरआई कैन यूज 3 डिफरेंट अकाउंट्स. जैसे बैंकिंग अकाउंट्स आपको शायद पता होंगे, सेविंग्स जो आप लोग खोल सकते हैं. एज एन इंडियन यू कैन ओपन सेविंग्स अकाउंट इन विच बैंक गिव्स यू इंटरेस्ट, current account in which you give money to the bank to have that account, fixed deposits and recurring deposits. These are 4 very basic accounts. उसके अलावा कोई इनोवेटिव अकाउंट हो तो बैंक वाइज वेरी कर सकता है. क्लियर है सबको? इसी तरह से एनी एनआरआई पर्सन हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया कैन ओपन 3 डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स. उसके बिना इन्वेस्टमेंट नहीं होता. तो लेट्स सी कौन कौन से. पहला है आपका, मैं फिर बोल रहा हूं, सारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एज इट इज रट लेना. ठीक है. डू दैट फॉर श्योर. NRE account, that is non-resident external rupee account, and the features about it देख लेते हैं. It is a kind of savings account in which you can deposit any foreign currency, which is, ये important, which is tax free. अब आप सोचिए मैं टैक्स फ्री क्यों करा? हाँ, मैंने आपको चीज समझाई थी. गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? एमएलए एमपी खरीदने के लिए नहीं लगाती है, वो तो हो जाते हैं पब्लिक सर्विसेज के लिए. गवर्नमेंट टैक्स लगाती है टू पब्लिक सर्विसेज के लिए, सो दैट यू पीपल कैन एंजॉय सर्विसेज. अब वो गवर्नमेंट करे या कोई प्राइवेट सेक्टर कर दे, पर्पस क्या है? सर्विसेज. तो इसलिए गवर्नमेंट इज सेइंग दैट यू डू नॉट लिव इन इंडिया, सो इफ यू ब्रिंग मनी इन इंडिया आई विल नॉट इम्पोज टैक्सेशन. से क्या होगा? मोर पीपल वुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया. बात समझ में आई? क्यों हमने टैक्स फ्री करा? इट्स अ गुड इनिशिएटिव. वी हैव डन टैक्स फ्री सो दैट मोर एंड मोर पीपल कम इन इंडिया विद देयर मनी. क्लियर? सो इट इज अ काइंड ऑफ savings account in which you can deposit any foreign currency. It will be tax free and freely repatriable. Free repatriable का मतलब क्या हुआ? जब मन करा तब लेके जा सकते हो पैसे. कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप अब निकालोगे तब निकालोगे. क्लियर? अगला पॉइंट, एंड इट विल बी अ रुपी डोमिनेटेड अकाउंट. याद रखिएगा सब लोग, इस अकाउंट में यू कैन डिपॉजिट एनी फॉरेन करेंसी और इंडियन रुपी, बट इट विल बी अ रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट. अब ये कैसे वर्क करेगा? मान लेते हैं यू लिव इन अमेरिका, यू गॉट डॉलर्स देयर, सो यू विल कम टू पीएनबी इन इंडिया, और मे बी ऑन पोर्टल ऑफ इंडिया पीएनबी यू विल ओपन दिस अकाउंट ऑनलाइन, मान लेते हैं. सो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्रांजैक्ट डॉलर्स, यू विल गिव डॉलर्स टू पीएनबी. आप रुपए थोड़ी ना पड़े हैं. यू विल गिव डॉलर्स टू पीएनबी, देन पीएनबी विल टेक दैट डॉलर्स टू आरबीआई, एंड आरबीआई विल गिव रुपी इन एक्सचेंज. तो आपके अकाउंट में रुपी ही होगा.
बट यू कैन डिपॉजिट एनी करेंसी। सबको समझ में आया? तो दैट इज व्हाट इट सेज, इट इज INR डोमिनेटेड अकाउंट। बात समझ में आया? तो कुछ फैक्टर में क्या समझ में आया? इट्स अ सेविंग्स अकाउंट इन विच यू कैन डिपॉजिट एनी फॉरेन करेंसी, इट विल बी टैक्स फ्री, फ्रीली रिपैट्रिएबल, बट INR डोमिनेटेड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला अकाउंट जो आप खोल सकते हैं दैट इज नोन एज नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट और नोन एज NRO अकाउंट। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट यू कैन ओपन। बोल दो तो जान निकल जाती है। एक सेकंड देखते हैं। NRO, चलिए देखते हैं क्या है। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। सो व्हाट इज द फीचर्स वी नीड टू नो। और इससे ज्यादा मत पढ़ना, ठीक है? इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस। इससे ज्यादा कोई रिसर्च करने के PhD नहीं करना हमें किसी टॉपिक पे, ठीक है? सो इट इज अ काइंड ऑफ, अगेन इट इज अ काइंड ऑफ savings account, but there is a difference here. It is a kind of savings account which is used for earning in India. Previous इसमें फर्क क्या है? In that you deposit money which you earn outside India. In this you deposit money which you earn in India. मान लेते हैं आप आए इंडिया में, आपने अडानी शेयर्स में इन्वेस्ट किया। अब वो पैसा कहीं तो उसका जो इनकम बनेगा कहीं जाना होगा, उसके लिए आप क्या खोलोगे? NRO अकाउंट। सबको समझ में आया फर्क? In that you deposit foreign currency, it is savings account that is useful if you have earning in India. Clear है सबको? ये this is the critical difference here. But याद रखिएगा it is also denominated in INR. चाहे अब आपकी इसमें इन्वेस्ट, चाहे आप पैसा इसमें डॉलर्स में डालें, किसी में भी डालें, अल्टीमेटली किस में रहेगा? रुपी में रहेगा। ठीक है, हाँ इसमें सेम मैकेनिज्म है। यू कैन डिपॉजिट डॉलर्स आल्सो इफ यू रिक्वायर और एनी फॉरेन करेंसी, बट अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? INR में। तो आप इससे विड्रॉ कौन सा पैसा कर सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ मनी यू कैन विड्रॉ आउट ऑफ इट? ओनली इंडियन रुपी। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा, दैट ओनली INR कैन बी विड्रॉन। आपको समझ में आया? अडानी स्टॉक में पैसा लगाया, वो रुपी में लगेगा। हाँ नहीं, डॉलर में कभी नहीं आएगा, इसीलिए तो मैंने लिखा है इसमें। किसी में नहीं आएगा। मैंने रुपी डिनोमिनेटर का मतलब क्या है? उसमें सिर्फ रुपी रहेगा, लेकिन आप कन्वर्ट करवा लो ना। आप क्या करेंगे? अपना अकाउंट से रुपी मिलेगा, जाके चेंज करवा लो डॉलर में। वो तो आप कभी भी करवा सकते, एक्सचेंज आप कहीं किसी भी बैंक पे करवा सकते हो, बट इसमें से आपको क्या निकलेगा? केवल रुपी में निकलेगा पैसा। हाँ, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? दैट इज फॉर अर्निंग आउटसाइड इंडिया, दिस इज फॉर अर्निंग इनसाइड इंडिया। ये फर्क है। पर याद रखिएगा दोनों INR डोमिनेटेड अकाउंट है। ठीक है, एक बार घर पे जाके एक बार रीड कर लेना, याद हो जाएगा। इससे ज्यादा रीड मत करना, ये जरूरत से ज्यादा वैसे भी इंफॉर्मेशन। लास्ट अकाउंट और देख लेते हैं, दैट इज FCNR अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। अब ये क्या होता है? अब ये अलग चीज है। ये क्या है? टर्म डिपॉजिट है। टर्म डिपॉजिट माने क्या होता है? काइंड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। इट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। प्रीवियस वाले कैसे थे? सेविंग्स अकाउंट in which you can deposit and withdraw at your ease. It's a term deposit, मतलब you can deposit at your wish, but you cannot withdraw without a limit, time limit. कि you can withdraw, मान लेते हैं 10 years, 5 years, जो भी केस बनता हो, ठीक है? It is a term deposit that is held. Another difference, it is in foreign currency. ये second difference है, ठीक है? और ये भी exempt होता है TDS से। TDS माने taxation से exempt होगा। The fund can be utilized in India only, ठीक है, आपको तो पता ही है। It is India only, और इंटरेस्ट इसमें आपको नहीं मिलेगा अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या क्या फर्क समझ में आया? पहला ये टर्म है, वो सेविंग्स थे। दूसरा ये फॉरेन करेंसी में रहेगा, वो डोमेस्टिक करेंसी में रहेगा। टैक्स इसमें भी नहीं लग रहा, इसमें TDS नहीं लग रहा, टैक्सेशन शायद इसमें लगता है, देख लेते हैं अभी। ये भी फ्रीली रिपैट्रिएबल। रिपैट्रिएबल का मतलब जब भी आप पैसा निकालोगे आप ले जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको इंडिया में ही रखना पड़ेगा पैसा। सबको समझ में आई ये बातें? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए आफ्टर दिस देयर इज अ काइंड ऑफ टेबल, इसमें देख लीजिए, इजी रहेगा आपको समझने के लिए। तो NRO, अच्छा एक और डिफरेंस है। NRO क्या है?
पार्शली रिपेट्रिएबल है, फुल्ली नहीं है। तो देखिए ये फॉरेन करेंसी में है, ये इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। फॉरेन करेंसी मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं, डिपॉजिट की बात हो रही है। विड्रॉवल इंडियन रुपी ये फॉरेन करेंसी। ये फुल्ली रिपेट्रिएबल है, ये पार्शली, ये फुल्ली। ये सेविंग्स काइंड ऑफ अकाउंट है, ये भी सेविंग्स और ये टर्म अकाउंट है। और इसके अलावा जॉइंट अकाउंट अलाउड है या नहीं है, इसमें केवल एनआरआई हो सकते हैं, आप किसी इंडियन को नहीं रख सकते जॉइंट अकाउंट में। इसमें एनआरआई भी होगा और इंडियन भी हो सकता है, उसमें केवल एनआरआई होगा। उसके अलावा क्या है देख लेते हैं। लोन मिल सकता है, लोन मिल सकता है रुपी में, लोन मिल सकता है रुपी में, और लोन मिल सकता है फॉरेन करेंसी में, बट विद सम रेस्ट्रिक्शंस। टैक्सेशन, ये टैक्स फ्री है, ये वाला टैक्सेबल और ये टैक्स फ्री। बस इतना ही काफी है। रिमेंबर दिस थिंग्स अबाउट दिस। सॉरी, मेरे ख्याल में इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक इनकम है। डोमेस्टिक इनकम में टैक्स, मैंने आपको फेसबुक का एग्जांपल बताया था ना। फेसबुक क्या कहती है, मैं टैक्स क्यों नहीं दूंगी, क्योंकि मैं फॉरेन कंपनी। वो इनकम जहां भी आपने कमाई होगी उन्होंने टैक्स ले लिया होगा, ये अज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको यहां तक? थोड़ा मानता हूं थोड़ा फैक्चुअल था, पर प्रीलिम्स लेवल था इसलिए। अरे ये आप रिवाइज 2-3 बार रिवाइज करो, ये बेसिक, इससे बेसिक क्या जाओगे। इसे 2-3 बार रिवाइज करिए और रट लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, रिमेंबर एवरीवन। चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये क्या हो गया, कितना माइनस करें। अगला, सेक्टर्स वेयर एफडीआई इज प्रोहिबिटेड। कहां कहां एफडीआई नहीं लगता, याद रखिएगा ये सारे सेक्टर्स। यूपीएससी कैसे खेलेगा आपसे, व्हेन इट विल आस्क अ क्वेश्चन इट विल से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसमें चुपके से एक वर्ड डाल देगा that FDI is a long term investment allowed in various sectors including chit funds। गलत हो जाएगी। देखिए पूरी स्टेटमेंट सही थी, एंड में चिट फंड्स कोने में डाल दिया। दैट्स हाउ यूपीएससी प्ले विद लैंग्वेज। यूपीएससी लैंग्वेज में बहुत खेलता है। किसमें? ओ उसमें क्या बोलते हैं आपका, वो रीड्स की बात कर रहे हो? हाँ रीड्स वाले में। तो और कई बार क्या होता है, वो दो चीजें कंबाइन करता है, जो एक सही होती है एक गलत होती है। कई बार क्या लिखिएगा स्टेटमेंट, फिर एक चीज एंड एक चीज, तो क्या होगा, समटाइम्स एक सही होती है दूसरी गलत होती है। तो जल्दबाजी में या तो आप पूरा नहीं पढ़ पाते या आधा पढ़ते हैं। लैंग्वेज में यूपीएससी बहुत खेलता है, इसलिए कंसेप्चुअल क्लियरिटी मेंटेन रखिएगा। अगर आपको वर्ड्स में कंफ्यूजन हो गई तो चीजें प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक और चीज समझाई थी, रिमेंबर दिस, अगर एक्सट्रीम वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, जैसे ओनली, मस्ट, एग्जैक्ट फिगर्स, समझ लीजिए वो स्टेटमेंट गलत है। अगर एक्सट्रीम वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मस्ट, शुड तो नहीं, मस्ट, ओनली, दिस, एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम वर्ड्स का मतलब गलती होगी स्टेटमेंट। इट्स अ कैची रूल। अगर मे बी, कैन बी, वो सही होगी, क्योंकि हो तो कुछ भी सकता है। ठीक है, हाँ समझ भाई। तो अगर वहां पे एक्सट्रीम वर्ड है तो हाई चांसेस है दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, और उसमें मे बी, कैन बी है तो मतलब सही है। ठीक है, तो हम यार आपका मेल का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे पे मेल क्यों नहीं आ रहा आपका, सबका आ जाता है आपको छोड़ के। रुकिए मैं इसमें टाइप करता हूँ, एक बार इसे पे देखना, एक बार आप। मैंने वैसे बोला था, आपने इंस्टीट्यूट में बात की थी क्या मधु मैम वगैरह से? आप एक बार मधु मैम को एक्सेस है उनसे, मधु या प्रिया मैम जो भी, उनसे एक बार बोलिए कि मैम मुझे एक्सेस चाहिए उस फोल्डर का, क्योंकि आपका मेल मुझे नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है सोम, मैंने आपको रिप्लाई किया है। किस नाम से है मेल? हाँ कुछ अलग ही नाम हो, जैसे एक व्यक्ति का बड़ा सही नाम था, पता है कौन था, किम जोंग उन, कोरिया वाले। मेल आया उससे, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है दुनिया में। और जब आप फॉर्म भरे कोई फैंसी, अच्छा डाउट वो आपका है, कुल 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 मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आई विल ऐड यू। और मैं क्या करता हूँ, फैंसी नाम मत रख के भरना यूपीएससी का एग्जाम। मेल जो भी रखे बड़ा सिंपलिस्टिक मेल रखना, और अगर फैंसी रखना चाहते हो तो फिर उसके आसपास प्रिपेयर रहना। जब भी आप कोई फैंसी चीज करोगे ना, कोई भी आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज, तो पहले लेते कि नॉर्मल क्यूरियोसिटी है। अगर आपने कोई चीज देखी तो एक क्यूरियस पर्सन पूछना चाहेगा ना, ये क्यों है भाई, ऐसा क्या रखा, तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, लेकिन फिर तैयार है ना क्वेश्चन के लिए। अगर आप प्रेडिक्टिबिलिटी चाहते हैं अपने इंटरव्यू में तो ऐसी चीजें कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं चाहते तो फैंसी मत बनिएगा, चॉइस आपके ऊपर है। क्लियर है?
चलिए जल्दी से, और ये रट लेना सब लोग, यू कैन नॉट हैव एफडीआई इन लॉटरी, चिट फंड्स, निधि चिट फंड्स वगैरह, ये आप व्हेन यू विल डू फाइनेंशियल सेक्टर इकोनॉमिक्स में ना, तो ये दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम। चिट फंड तो सबने सुना ही होगा, लक्ष्मी चिट फंड 21 दिन में पैसा डबल ठीक है। तो चिट फंड वैसे स्टेट रेगुलेट करते हैं, ठीक है, स्टेट लॉ चिट फंड रेगुलेशन एक्ट के तहत स्टेट रेगुलेट करती है। निधि कंपनी एक प्रकार की कोऑपरेटिव्स होती है, जैसे कोऑपरेटिव वर्क करता है ना, ऑल पीपल कम टुगेदर टू फंड द मनी वाला, उसी तरह निधि कंपनी का प्रोसेस होता है। डिटेल में हम भी जान नहीं सकते अभी, बट रिमेंबर ये सब आपके फाइनेंशियल सेक्टर्स और स्कीम्स में जब आप आएंगे तब करवाया जाता है। गैम्बलिंग में नहीं लगा सकते, रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार सिगरेट टबैको में नहीं, सेक्टर्स दैट आर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लाइक एटॉमिक एनर्जी एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। ये क्या है, TDR क्या है, कभी नाम सुना, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स? इकोनॉमिक्स हुआ नहीं होगा इससे ज्यादा आपका। इकोनॉमिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर का जब चैप्टर होगा आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में बात आती है TRDS की, ठीक है, TDRs की। अब ये हाउ इट वर्क्स देखिए, फॉर एग्जांपल यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, ठीक है, इन अ फॉरेस्ट एरिया, आपने कुछ फॉरेस्ट लैंड एक्वायर किया, अब वहां पर बिल्डिंग बनाना चाहते हो, बट दैट इज अ वेरी क्रिटिकल एरिया। तो उस केस में क्या होगा, आपने वो परचेज कर लिया है, लीगल ओनर हो, कोई रोक नहीं सकता आपको बनाने से, बट जस्ट बिकॉज द गवर्नमेंट में फील कि भाई यहाँ पे बनाने से इट कुड बी इकोलॉजिकल डिजास्टर, सो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको उतना ही लैंड उसी प्राइस का कहीं और दे देगी। इसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या फिर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, क्योंकि आपके पास राइट था टू मेक बिल्डिंग देयर, बट इट वाज नॉट सूटेबल और इट वाज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी और जो भी केस था, so government gave you that right but somewhere else, that's why it is transferable development right। ये कई जगह इस्तेमाल होता है, खासकर इकोलॉजी वगैरह में, तो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट वगैरह के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है, जहां अर्बन एरियाज है वो कहती है आप वहां जाके कंस्ट्रक्ट कर लो, आपके पास लैंड है, यू अक्वायर दिस लैंड, हमें पता है आपने अक्वायर किया है किसी फार्मर से, बट इट इज नॉट सूटेबल हियर टू बिल्ड क्रिएट अ बिल्डिंग और रोड जो भी है, बट यू विल डू अर्बन एरियाज में ऑलरेडी वहां पे है नहीं, तो आप क्या काम करिए, वहां जाके बना लीजिए, हम आपको लैंड देते हैं इसके बदले में। बात समझ में है सबको? तो इन दिस एडवेंचर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज यू कैन नॉट हैव एफडीआई। रॉटलन कर लेना सब लोग। चलिए बाकी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, हो गया सारा काम, ठीक है। इश्यूज समझ लेते जल्दी जल्दी। राउंड टिपिंग जो मैंने आपको अभी समझाया, राउंड टिपिंग ऑफ मनी, रिमेंबर अडानी केस में जो मैंने आपको समझाया, तो ओ माय गॉड इतनी तकलीफ, ठीक है। राउंड टिपिंग आपका मार्केट मैनिपुलेशन, इवेजन, देखिए अडानी एग्जांपल सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। यू जनरेटेड प्रॉफिट, यू ट्रांसफर्ड योर प्रॉफिट टू अ ऑफशोर कंपनी फ्रॉम एनी मैकेनिज्म, जो अब मनी लॉन्ड्रिंग में पढ़ेंगे, देयर आर वेरियस मैकेनिज्म। यू जनरेटेड प्रॉफिट हियर, यू ट्रांसफर्ड दैट प्रॉफिट टू एन ऑफशोर कंपनी। तुम्हारी शकल बता रही है तुम नहीं समझे, रुक जाओ, कहाँ गया, तो मैं जल्दी से बता दें कि कैसे वर्क करता है। इसे आपने शायद कभी हवाला का नाम सुना होगा। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। यू टेक योर कैश, ठीक है, यू टेक योर कैश टू हवाला एजेंट, मान लेते हैं SW1, दिस पर्सन इज इन इंडिया, सो व्हाट दिस पर्सन विल डू, मान लेते हैं आप 10 करोड़ रुपए लेके गए, दिस पर्सन विल से कैश है ये, ब्लैक मनी इलीगल मनी मींस एनी मनी ऑन विच टैक्सेस आर नॉट पेड, उस मनी को हम बोलते हैं ब्लैक मनी और इलीगल मनी। So you took 10 crore rupees to a हवाला एजेंट नंबर 1, अब वो क्या करेगा, he will say I will take 1 crore, इतना लेते नहीं मान लेते हैं, he take 1 crore rupees, उसके बाद क्या करेगा, he will make a call to another हवाला एजेंट 2, he may be in US से, तो ये व्यक्ति कहाँ पे है, इंडिया में, ठीक है, he will make a call to हवाला एजेंट 2 is in US से, तो यूएसए वाला व्यक्ति क्या करेगा, he will give that money to your relative or anyone, जो भी आप नाम बोलेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में एक चीज नोटिस करी आपने, पैसे ने बॉर्डर ट्रांसफर नहीं करा, इसीलिए हवाला का मनी पकड़ में नहीं आता कभी। हवाला का मनी, और हवाला किसने बनाया, विश्व गुरुओं ने बनाया। कौन है वो विश्व गुरु, हम लोग। इंडियंस मेड दिस हवाला सिस्टम और इट इज सो फुल प्रूफ कि आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो हवाला का पैसा पकड़ सके। आप हवाला के एजेंट को पकड़ सकते हैं। आप कैसे पकड़ते हैं, आप हवाला का एजेंट जब आपको पता लग जाता है तो उसकी मदद से आप डिटेल निकाल लेते हैं इन लोगों की जिन्होंने पैसा दिया, बट आप इस ट्रांजैक्शन को नहीं पकड़ पाओगे।
ठीक है, और दीज कंट्रीज कैन बी एनीवेयर। अब दिल्ली पुलिस के पास दिल्ली में कंट्रोल है ना, अब वो यूएस में जाके थोड़ा ना कंट्रोल ले लेगी। बात समझ में? इसके लिए जो भी है देखेंगे। सो यू मान लेते हैं यू जनरेटेड प्रॉफिट, अ प्रॉफिट दैट इज ऑफ द बुक्स, जैसे रियल एस्टेट में होता है। अगर हमने प्रॉपर्टी खरीदी हो, क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में सम मनी दे टेक्स फ्रॉम ऑफिशियल चैनल, जिस पे टैक्सेशन देते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, एंड रिमेनिंग पे दे टेक इन कैश। जो पेपर्स बनते हैं ना प्रॉपर्टी के, वो हमेशा कम प्राइस का होता है। इफ यू बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ 10 लाख रुपीज, तो पेपर हो सकता है 5 लाख का हो। ठीक है, तो रिमेनिंग मनी बचा, अब वो मनी कैसे, उसे आपको भाई यू हैव टू यूज दैट मनी, और आप ऐसे कैसे, आप कितने चाट खाते फिरोगे, ठीक है, 10 लाख की कैसे खा लोगे। So what you will do is you will take that money to a hawala agent. That agent will make a call to his her counterpart. वो व्यक्ति आपका जो भी रिलेटिव वगैरह होगा उसके अकाउंट में पैसे पहुंचा देगा। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। तो सरकार के नजर में क्या दिखेगा, ये रिमिटेंस। सरकार को लगेगा कि आपके भाई बंधु जो भी था उसने आपको पैसा भेजा अपनी सैलरी का। अब भारत सरकार को नहीं पता उसने वो पैसा कैसे कमाया, वो किसे पता होना चाहिए था, यूएस की सरकार को, क्योंकि विद इन बॉर्डर उनका कंट्रोल है, लेकिन वो पैसा इससे आया था। समझ में आया? तो इसे पता लगाना वर्चुअली इंपॉसिबल। अब आप कहेंगे ये व्यक्ति इसे पैसा क्यों देगा भाई, इसे क्या मिला इसमें, इसे भी कमीशन तो मिला, पर यहाँ पे आपके जैसे और भी मुसेरे भाई बैठे हैं आपके। ये बंदा इसके पास कैश लेके जाएगा डॉलर में, ये बंदा इसे कॉल मिलाएगा और ये रुपए में दे देगा। ऐसे होता है, ये टू एंड फ्रो चलता रहता है। ठीक है, और एंड इस ये पकड़ा नहीं जाता, बिकॉज इसमें पैसा कभी बॉर्डर ट्रांसफर नहीं करता। जो कैश आपने दिया वो कभी बॉर्डर ट्रांसफर नहीं करता। क्या ट्रांसफर करता है बॉर्डर, सिर्फ एक कॉल चली गई ऊपर, ठीक है, सिर्फ एक कॉल ट्रांसफर करती है। इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू नो प्रेवलेंट। यहाँ पे हम करोल बाग में अंबर, और यहाँ पे 3-4 हवाला एजेंट का तो मैं जानता हूँ। यहाँ पे जो आपके ये है ना, क्या बोलते हैं, यहाँ पे मार्केट है ना, ये कपड़ों की मार्केट जो है, यहाँ पे बहुत हवाला एजेंट। हाउ आई नो है, मेरा दोस्त वो है, उसके थ्रू मुझे पता है। मेरे पास इतना पैसा है नहीं हवाला करूं, लेकिन कुछ लोगों पे है। ठीक है, एंड इट इज वेरी प्रेवलेंट, इट इज वेरी 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 प्रेवलेंट, क्योंकि पैसा पकड़ नहीं आता इसमें। अगर आप हवाला एजेंट का पता लगा लो, और यूजुअली हवाला एजेंट जो होते हैं ना प्रॉपर बिजनेसमैन होते हैं, इनकी कोई ना कोई शॉप होगी, प्रॉपर चलने वाली शॉप, आपको पता ही नहीं लगेगा वो कर क्या रहा है। चलिए एनीवे ऐसे चलता रहता है दुनिया। ठीक है, क्लियर। तो जो आपका एफडीआई एफपीआई है, ऐसे भी होता है। हवाला से आपने ब्लैक मनी को ट्रांसफर करवा दिया, वहां पे व्यक्ति जो होगा वो आपका शेयर खरीद लेगा इंडिया में आके। तो समझ में आया? तो इसीलिए एफडीआई एफपीआई काफी प्रॉब्लमैटिक भी होता है। The only major number we have is to arrest this person. अगर आपको हवाला व्यक्ति का पता लग जाए तो आप पता लगा सकते हैं, अदरवाइज इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल टू कैच देम। और एक बात बताऊं, सब लोकल पुलिस वालों को पता होता है, उन्हें सब पता होता है, कट उनके पास भी जाता है। वो क्या होता है, जब कोई बात बड़ी हो जाती है तो वो ड्रामा करने के लिए 2-3 बंदों को पकड़ना पड़ता है। ठीक है, और ये एजेंसी है, अगर आप हवाला एजेंट पकड़ भी लिया तो उसके लिए दूसरा बंदा बैठ जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए एनीवे, तो लास्ट न्यूज़ों से भी देख लेते हैं, हमारा टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी कर लेते हैं। लास्ट न्यूज वी हैव इज आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। तो मैं जल्दी एक समरी की फॉर्म में समझाता हूं। व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट स्कीम्स? देयर आर 3 स्टेजेस। एनी गवर्नमेंट स्कीम हैज 3 स्टेजेस। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा ट्रांसफर, एंड तीसरा एक्सेस। ITA, every government scheme has 3 components or 3 stages. Number 1 is identification of who? Beneficiary, the person who will receive the government scheme. Second, transfer of benefits, आपको benefits transfer करने हैं. Third, that person can access the benefits. ठीक है, so these are 3 stages of every government scheme: identifying the beneficiary, then transferring the benefits to that person, and then that person must be able to access that. अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है आइडेंटिफिकेशन, who is eligible, who is not eligible. ठीक है, इसमें there are 2 kind of errors we witness, that is inclusion error and exclusion error. Inclusion error means a person who does not deserve the scheme gets the scheme. हाँ ठीक है. Exclusion error means a person who deserves the scheme does not get the scheme. Inclusion means a person who does not deserve the scheme gets the scheme. Exclusion में a person who deserves the scheme does not get the scheme.
Which you think is more severe? Exclusion is always severe. मान लेते हैं गवर्नमेंट brings a scheme to provide food to kids. ठीक है, government provide food to 99 people. One kid is left out and dies. So how it will be covered in media? देखिए ये निर्दयी सरकार. It happened literally झारखंड में. There was a girl, a school going girl, and the problem was lockdown was there, so schools were closed. अब schools में you get midday meal. Midday meal हम इसीलिए लाए थे because when we said to the people of India, send your kids to the school, they said we don't have money to eat. This person must work. We said we will provide the food. हमने बोला बस आप भेज दो. And this is a very good scheme. We said you just send your kid, we will give them food so that this argument, इसे देखिए डबल फायदा हुआ हमारा. We ensured India's nutrition. देखिए a healthy kid, a kid who get proper nutrition will be healthy. That healthy kid will not get ill more. So you do not have to build a big hospital. और it is so efficient. I think कर्नाटका या पता नहीं कहाँ पे ट्राई हुआ था to provide eggs. कर्नाटका में था शायद. To provide eggs. Eggs are wholesome nutrition. पर फिर आपको पता है एग नॉन वेज होता है एंड देन हमारी सरकार थोड़ी आपको पता है कैसे लोग हैं. तो दिस पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग कि आप इन्हें नॉन वेजिटेरियन बनाना चाहते हो, ये हमारे धर्म के खिलाफ है. मतलब वो भूखे मर रहे थे तब धर्म के खिलाफ नहीं था. मतलब अटर स्टूपिडिटी है. एग वाज वेरी गुड. बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एग इट वाज सीन देयर वाज अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिशन. वो ज्यादा बेटर था. पर धर्म भी कोई चीज होती है, क्या कर सकते हैं. ठीक है, वो राजनीतिक धर्म. So you're getting the point. That's why we brought midday meal scheme. Ab that girl could not get midday meal scheme because schools were closed. That family had a BPL card, ration card. They went to the ration shop, but there was a problem with Aadhaar seeding. उस समय आधार कंपल्सरी कर दिया था सरकार ने. तो their ration card was not attached to a Aadhaar card. अब they could not get food from the ration shop. Ultimately, that girl died, and it was covered in every newspaper. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड पीडीएस टू करोड़ ऑफ पीपल. उसमें से एक लड़की को नहीं मिला. आई एम नॉट डिस्काउंटिंग हर लाइफ, शी इज एज इक्वल टू एवरीवन, बट व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट बिकॉज वन पर्सन कुड नॉट गेट इट, आपकी पूरी स्कीम बेइज्जत हो गई. दैट इज एक्सक्लूजन. गवर्नमेंट कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ फ्री लोडर्स. हमेशा अगर 10 के लिए स्कीम लाए हैं, 20 को मिल गई, कोई फर्क नहीं पड़ता. टैक्सेशन वगैरह से कौन सा मोदी जी अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं, केजरीवाल अपनी जेब से पैसा दे रहा है. हमारा ही पैसा, टैक्स बढ़ा देंगे. Inclusion error is never a problem. More people we can always take care, but the people who literally deserve the scheme, they should not be out of it. सबको समझ में आया? तो जल्दी से इसी के लिए लाया गया है जैम ट्रिनिटी. और ये जो न्यूज है जैम के बारे में है. जनधन, आधार एंड मोबाइल. अब कैसे होगा, तीनों स्टेज समझते हैं. आइडेंटिफिकेशन किससे किया जाएगा? आधार से. आधार अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आधार पे क्या लिखा है? हाँ, उसमें नहीं, उसके अलावा क्या लिखा है? इट इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नॉट सिटीजनशिप. आधार पे अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो लिखा होता है इट इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. सो यूजिंग आधार यू विल आइडेंटिफाई द पर्सन एंड देन यू विल ट्रांसफर दैट बेनिफिट यूजिंग जनधन आधार. सॉरी, तो आधार से आपने क्या करा? यू आइडेंटिफाइड द पर्सन. जनधन में यू ट्रांसफर द मनी एंड थ्रू मोबाइल दैट पर्सन कैन एक्सेस. मान लेते हैं गवर्नमेंट ट्रांसफर 1500 rupees to every woman in India. So what will happen? You will receive a message on your phone. Your account has got 1500 rupees. That is a valid proof. You will take that message, go to any bank and say, देखो 1500 रुपए आए हैं, दे दो मुझे. वरना पहले क्या होता था? These all DM, CM, PM जो भी हैं, what used to happen? Government used to give money to these people. राजीव गांधी ने पॉपुलरली कहा था, when I send 1 rupee, I think 20 पैसा और 10 पैसा reach to the people. सबका कट बनता जाता है. अब गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए निकाले मान लेते हैं, तो क्या होता है? इट विल गो फ्रॉम स्टेजेस. पहले उसके से वहां जाएगा, पहले सेंटर से स्टेट, स्टेट में भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, फिर जाके कहीं वो व्यक्ति तक पहुंचता है. तो अब मान लेते हैं डीएम करप्ट है, जो कि होते भी कई सारे, तो वो क्या करेगा? पैसा खा लेगा. अब आम व्यक्ति अगर इतना ही पावरफुल होता तो वो आम क्यों होता? ठीक है, आम क्यों होता? चुसा हुआ आम क्यों होता वो? ठीक है. सो द थिंग हियर इज, तो व्हाट डीबीटी इज गुड. इसमें क्या करा सरकार ने? डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया. आपको सरकार ना ही डीएम ना ही एसडीएम, किसी के पास कोई पावर नहीं है, कोई रोक ही नहीं सकता. आपका पैसा सीधा आपके अकाउंट में आया, सीधा बैंक में आया. गो टू अ बैंक, आपके पास मैसेज का प्रूफ भी है, क्योंकि आपके पास मैसेज आएगा मोबाइल में. टेक योर मोबाइल टू द बैंक वाला, वो मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल में मैसेज है. आप लड़ पड़ोगे कि भाई 1500 रुपए लिखे हैं, दो मेरा पैसा. और ऐसा हुआ था एक व्यक्ति के साथ, एक्सीडेंटली उसके अकाउंट में कुछ 20 लाख या 10 लाख कुछ ट्रांसफर हो गए थे.
उसने खर्च कर दिए सारे पैसे। अब पुलिस ने पूछा क्यों खर्च कर दिए, उसने बोला कि मुझे लगा मोदी जी ने दिए। ठीक है, वो एक्सक्यूज दे रहा था, उसने यही बोला लिटरली, उसने कहा मोदी जी ने वादा किया था 14 लाख का, मुझे लगा शायद उसकी पहली इंस्टॉलमेंट आई है। ठीक है, लिटरली उसने यही बोला था। बट अंडरस्टैंड दिस, तो उससे ही जो है हाँ तो उसने खर्च कर दिया। चलिए एनीवे वो बात नहीं है, मेन बात क्या है, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। क्लियर है? तो ये जो पूरी न्यूज है उसी के बारे में कोई रिसेंट एक स्टडी करी गई, इसमें पाया गया इट हैज हाई रेट ऑफ सक्सेस। सक्सेस रेट देखिए 99.55, इट्स अ वेरी गुड सक्सेस रेट फॉर ट्रांसफर्स ऑफ बेनिफिट। तो जैम ट्रिनिटी इज अ सक्सेस नंदनलेस। क्लियर है? तो बाकी आप डिटेल में पढ़ लेना, समरी मैंने बता दी। चलिए, with that note we shall wrap today's class. Have a nice day everyone. We will meet again next weekend 5 to 7. Very welcome everyone. Bye bye.